7 مہینے پہلے، اتنا مجھے یاد ہے، ایک حوالہ میں نے آپ سے لیا تھا، تو اچھا وہ باقی آج یہ اس پہ کون بات بول کریں۔ رہے ہیں؟ ہوسٹ بول رہے ہیں؟ جی میں ہوسٹ بول رہا ہوں جی۔ اچھا، تو آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ میرا نام ڈاکٹر ابن علی ہے۔ اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے جی جی، تو بات ہم یہ کر رہے تھے آج کہ یہ جو قادیانی حضرات ہیں، جن میں کچھ شاطم ہیں اور کچھ عام جو لوگ ہیں نا، تو رویہ کیسا ہونا چاہیے عام لوگوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ، تو اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب تو بات کریں، آپ سنیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک کوئی محترمہ تھیں، مجھے نہیں یاد کون ہے، تو وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ بڑا ہمیں مطلب مفہوم ان کا یہ تھا کہ بڑا پیار محبت والی زبان استعمال کرنی چاہیے، اور جب ہم جا کے ان کو دجال کذاب کہتے ہیں تو وہ پھر پتہ نہیں بات نہیں کرتے، یا اس طرح کی کوئی بات کر رہی تھی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آگے سے پھر توہین کرتے نا انبیاء کی، اگر انہیں کچھ بھی کہہ دو نا۔ ہاں، وہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ توہین جو ہے نا، وہ توہین انہوں نے کرنی ہے، بھلے آپ ان کو تحفے کے اندر کوئی پھول کا گلدستہ دیں یا تحفے کے اندر کوئی لتروں کا ہار دیں، وہ توہین انہوں نے کرنی ہے۔ یہ ہمارے تجربے کی بات ہے۔ آپ بھلے جائیے کبھی پھول کا گلدستہ لے کے جائیے گا اور گفتگو کر کے بتائیے گا کہ آیا آپ کے گلدستہ دینے کے بعد انہوں نے توہین کی کہ نہیں کی، ہمیں بھی بتائیے گا۔ جبکہ ہزارہا دفعہ اس چیز کے تجربات ہو چکے ہیں کہ گستاخی جو ہے نا، وہ قادیانی کی گٹی کے اندر شامل ہے، وہ اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ قادیانی سے جب آپ اس کے مطلب کی بات کرتے رہیں گے تو وہ ٹھیک رہے گا۔ اب اس کے مطلب کی بات کی ہے، اس کے مطلب کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت کرنا ہے، اور وہ بھی قرآن سے کرنا ہے، حدیث سے نہیں، قرآن سے ثابت کرنا ہے، اور اجرائے نبوت پہ بات کرنی ہے، اور وہ بھی قرآن سے کرنی ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ اچھا، جب تک آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، جو اس نے موضوع دیا یا جو اس کی خواہش ہے اس پر آپ کرتے رہیں گے، وہ ٹھیک رہے گا۔ وہ بھی جی 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 کرتا رہے گا، یس سر کرتا رہے گا۔ جو ہی آپ رتی برابر بھی ایک جملہ بھی مرزا قادیانی کے بارے میں، اچھا کتاب کا حوالہ دینا بڑی دور کی بات ہے، کئی دفعہ ہم نے دیکھا صرف مرزا کا نام ابھی لیا ہے، صرف نام، تو آگے سے براڈ کے اندر سے ایسے چیخو پکار شروع ہوگی کہ تم نے نام کیوں لی ہے، اس کی تو بات ہی نہ کرو۔ بھائی جب مرزا قادیانی کی بات نہیں کرنی تو پھر قادیانی سے بات کون سی کرنی ہے؟ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، نبوت جاری ہو یا بند ہو، مرزا قادیانی کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوگا؟ یہ فلسفہ آج تک نہیں ہمیں سمجھ آیا۔ تو ہمارے ڈیبیٹرز جو قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں کامیاب ہیں، کہ بڑی قادیانیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں جا کے، وہ طبقہ ہے ہمارے مسلم ڈیبیٹرز کا کہ جو قادیانیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں بس، اور قادیانی ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ ڈیبیٹس کریں گے، کیونکہ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے چاہتے ہیں، وہ قرآن پاک کی وہ آیت، یہاں حافظ صاحب گلاب جامن صاحب بیٹھے ہیں غالباً، وہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، ہاں جی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ نے بار بار فرمایا، یہ آیت آپ کو قرآن میں کوئی 10 دفعہ ملے گی کہ خطوات شیطان کے اوپر نہیں چلنا، یہ جدھر تمہیں لے کے چلنا چاہتا ہے نا ادھر نہیں جانا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمارے وہ جو دوست ہیں نا
जिनको बड़ा शौक होता है कादियानियों के साथ डिबेट करने का, तो वो शौक तो अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन वो खुतवाते शैतान के ऊपर चल पड़ती हैं कि शैतान उनको जिधर लेके कान पकड़ के जिधर चलाना चाहता है उधर चल पड़ते हैं। वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, बस चल पड़ते हैं, देखी जाएगी। भाई असल तो बिल्कुल कादियानी के साथ मिर्जे कादियानी की हमने जात और किरदार को डिस्कस करना था ना, वो हम करते नहीं है। जब वो ही मतलब देखें बात सुने भाई, एक शख्स जानी है, शराबी है, रंडीबाज है, और जो गलत काम करता है और दलाइल के जरिए ये चीज साबित है, उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तो भाई ये वाली चीजें हम किससे जाके पूछें, किससे डिस्कस करें? कोई आज तक कोई मौका कादियानियों ने हमें दिया हो, कोई एक मौका दिया हो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मिर्जा कादियानी की जात और किरदार डिस्कस हुई हो? कभी। जब मिर्जे की जनाकारी की, रंडीबाजी की बात आएगी तो जनाब ओहो नहीं, वो अंबिया के ऊपर बुहतान लगाते रहे हैं लोग। चलो मिर्जे की शराब नोशी की बात कर लो, नहीं वो इस तरह के इल्जामात लगाते रहे हैं। मिर्जे की वो जो जनाब चोरी चकारी की बात कर लो, और नहीं वो असल में इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। मिर्जे कादियानी की कुरान की तहरीफात की बात कर लो, जनाब उसका अपने आप को अल्लाह कहना, अपने आप को मोहम्मद कहना, हकीकी मोहम्मद कहना, अपने ऊपर कुरान के नजूल की बात करना, ये सारे जितने हजार मौजूआत हैं मिर्जा कादियानी से रिलेटेड, तो आगे से कादियानी का सिर्फ एक जवाब होता है, नहीं इस तरह के इल्जामात जो बुहतान है वो लगते रहे। यार ये कोई जवाब है? बताइए। मेरी आजज की कितनी किताबें आ चुकी हैं? मेरी किताबों में से किसी एक किताब के एक सफे क्या एक सतर का भी जवाब किसी कादियानी ने कभी दिया हो? अब देखें, हालिया किताब आई है मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी, उसमें तकरीबन 65 के करीब हवाला जात किताबों के, कादियानी किताबों के असल स्कैन मैंने लगाए, असल स्कैन, ताकि कोई ये ना कहे कि तुम बुहतान लगा रहे हो, तुम इल्जाम लगा रहे हो। भाई किसी एक हवाले का कोई जवाब है? आगे से नहीं तुम ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो तो जमात मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी जमात, खत्म हो जाएगी जमात। चलो ये जवाब है। वो लकी तवाइफ के कोठे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ओए उसको पहले नीचे तो उतारो, कोठे से नीचे तो उतारो, फिर बात करते हैं तुमसे हम। वो मुजरे देख रहा है लकी तवाइफ के, वो जनाब उनके ऊपर नोट फेंक रहा है, और दूसरा हीरा मंडी में और भी मुजरे और भी कोठे थे कि जिन पर मिर्जा कादियानी की मुरीदनियां नाच गाना करती थी, कंचनियां, उनसे वो चंदे लिया करता था बकायदा, जिसको बत्था कहते हैं। कितने कोठे थे उसके थे, मैंने साबित किया भाई, तुम्हारी किताबों से साबित किया। वो किसी चीज का तो जवाब दो मियां। अच्छा ये बातें जब करेंगे तो हमारे मुसलिहीन आगे से कुछ आ जाते हैं, और नहीं ये सख्त बातें ना करें उनसे, ना 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 नहीं सख्त बातें नहीं करनी। तो भाई ये होर केड़ियां गल्लां करिए यार। तो क्या तुम ये चाहते हो कि वो जिधर हमें खुतवात के ऊपर चलाना चाह रहा है वो वाली बातें करें? वो तो चाहता था कुरान से बात करो, तो खत्मे नबूवत पे बात करो, तो वो वफाते मसीह पे बात करो, तो क्या उधर वही काम करना शुरू कर दे हम? क्या तुम हमें ये दर्श देना चाहते हो कि हम अपने अल्लाह की बात ना माने? अल्लाह ने हमें वाज़े तौर पे फरमाया था कि वला तत्ताबियू, इत्तबा नहीं करनी खुतवात शैतान, शैतान के खुतवात की, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या तुम ये चाहते हो? तो भाई ये जो मुसलिहीन आए रोज पैदा होते रहते हैं, मेहरबानी करें आप हमें अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म ना दें, मेहरबानी करें आप। हम अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं कर सकते,
हमने तो अपने अल्लाह की बात माननी है। हमने मिर्ज़ा कादियानी की जात से बाहर निकलना ही नहीं है। कहते हैं, कादियानी कहते हैं कि नहीं, वो जब नबूवत का दावा अभी नहीं किया था तो उससे पहले ना तुम्हारे सारे मौलवी बड़े बड़े जनाब बड़ी तारीफों के पुल बंधा करते थे, कहते थे ये बहुत बड़ा आलिम, ये वो। और मैंने कहा ऐसा कर लेती हैं, दावा नबूवत को छोड़ो ना, दावा नबूवत तो उसने 1900 के अंदर की है जाके। हम मिर्जे की पैदाइश से बात शुरू करते हैं। तुम मिर्जे की वफात को भी छोड़ो कि वो जो मिर्जा कादियानी लाहौर में टट्टी मूत्र करता मर गया था, कहता तो वो यही था मक्के में मरेंगे या मदीने में, लेकिन लाहौर में लैट्रीन में मर गया। उसको छोड़ो तुम, हम मिर्जे की पैदाइश से बात शुरू करती हैं ना। तो लो जी, पैदाइश से बात वो भाग रहे। नहीं 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 नहीं, ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। उन्होंने उन काने ਨੂੰ अपनी कानों ਤੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵਫਾਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੱਟਾ खोल ਦਿੱਤਾ है। लो जी, हजरत जी पैदा कैसे हुए थे जी? हजरत जी फरमाते हैं, हजरत मसीह मऊद साहब, मैं अब यहाँ पे खवातीन भी बैठी होंगी, वो फिर मैं ज्यादा नहीं इसके ऊपर गुफ्तगू करता, बस इतना बता देता हूं, इतनी बेगैरती इसने बयान की है, इतनी बेगैरती। अपनी पैदाइश का जिक्र तो फिरौन तक ने नहीं किया इस तरह का, और अबू जाल ते अबू लाब तक ने नहीं किया इस तरह का तज़किरा जिस तरह का इसने मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी पैदाइश का जिक्र किया है। अपनी मां की तंबी खोल के रख दिया उसने। कौन ऐसा बेगैरत होगा दुनिया का कि जो लोगों के सामने अपनी मां की तंबी खोल दे, ऐसे नाला खोल के रख दे, उसको नंगा कर दे अपनी मां को। मैंने इसके ऊपर भी पूरी किताब लिखी है, पैदाइश मिर्जा कादियानी, जाके पढ़िए आप। कभी कोई जवाब किसी कादियानी की तरफ से आया हो ना? उसकी तुम पैदाइश का जिक्र करते हो ना वफात का जिक्र करते हो। ये शोर कहीं से आ रहा है। मलक जरा माइक म्यूट करना भाई। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक मैं जरा थोड़ी जी गल कर ला ते फिर कर लिया हाँ जी, वरना गल जाना अधूरी नहीं रह है, गल करनी है। शाह साहब को बात मुकम्मल कर लेने जी, दे जी। पहले। शाह साहब को बात मुकम्मल ठीक है। कर लेने दे। तो बात ये है कि कादियानियों से हमारे ये मौजूआत बनते ही नहीं है, बिल्कुल ये मौजूआत नहीं बनते। जिन मौजूआत के ऊपर लोग हमें चाहते हैं कि इस पे बात क्यों करें भाई, क्यों करें, वजह बताएं भाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौतशुदा साबित भी हो जाए तो मिर्जा तो वो उधर खड़ा है, बोतलें, शराब की बोतलें हाथ में थामे, कभी टानक वाइन, वो कोको वाइन, कोला वाइन, वो तरह तरह की विक्टोरियन शराबें लेके वो शराब के नशे में मस्त वहां खड़ा है। भाई हजरत ईसा की वफात का असर मिर्जे की सेहत पे क्या पड़ेगा बताओ? क्या उसका नशा उतर जाएगा? फीमी था मिर्जा कादियानी, वो नमर्द इंसान था। अपनी नमर्दी का उसने नुस्खा जो तैयार किया था, ज़द-ए-जामे इश्क, कहता था ये इल्हामी नुस्खा है। फीम उसमें पड़ती थी, पूरी जिंदगी फीम खाता रहा मिर्जा कादियानी, अफ्यून की था। तो क्या वो उसकी अफ्यून खत्म हो जाएगी? वो बंदे दे पुत्र बनो यार, कोई गल करो, करन वाली करो साडे नाल। हवा इधर दी टुरे उधर दी टुरे, नहीं ईसा नूं जिंदा साबित करके बहा दियो, कमाल कर दियो। तो बहरहाल ये है कि ये जो हमारे मुस्लिहीन भी जो नवे ताजे पैदा होते रहते हैं, वो भी थोड़ी सी अकल के नाखून लिया करें कि ऐसी किसी काम की हमें दावत ना दिया करें कि जो मतलब हम नहीं कर सकते, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होती हो। ठीक है, अच्छा मलक भाई कर लें बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। मुफ्ती साहब मैं एक गल करना चाह रहा, मगर माइंड ना करो। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
चलो ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं ਉੱਤੇ माइक ਕੁਫਰ ਦੇ म्यूट कर ਫਤਵੇ लगा साहब जे सलाम अलैकुम। किस तरह आपकी तबीयत? ਆਦਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ ਕੀ ਜੇ नहीं नहीं ਇਹ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਦੇ ਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰ ਬੜੀ ਰਿਹਾ ਆਦਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਹੈ ਛੜਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ आदम मैं भाई मुफ्ती साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ना यार मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं, हमारे आलिम हैं, उलमा हैं। बिल्कुल। अगर किसी भाई का कोई एतराज है तो वो हमने अपने उलमा से ही करना है ना। बिल्कुल इसी तरह बात तो कर नहीं रहे मलिक साहब। और मुफ्ती साहब उसमें हो सकता है कोई ऐसी गाइडेंस दे दें जिससे हमें कोई रहनुमाई मिल जाए। प्लीज आदिल भैया आप म्यूट कर लें, कर लेने के बाद कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब मना भी तो कर रहे हैं ना। नहीं गुलाब जामुन भाई देखिए मुफ्ती साहब मना कर रहे हैं किस वजह से मना कर रहे हैं हम क्या किसी यार, कादियानी मलक के भाई, ऊपर मुझे बात इजाजत है करेंगे बोलने की, बात की इजाजत है मुझे। मुफ्ती साहब मेरी तो सुनी कोई नहीं मैं क्या एक मिनट नया ना सुनाओ, तुसी माइक म्यूट करो जरा थोड़ी देर। जी हाँ चलो, बहरहाल आखिरी दफा मैं अर्ज करने लगा हूं, आखिरी दफा, बिल्कुल आखिरी दफा, रिकॉर्ड पे रख लें। मुझसे बात करनी है तो सिर्फ कादियानियत की करें, मिर्जा जूनियर जेलमी की करें, इन फितनों के मुतल्लक करें, 1000 दफा करें, आजज हाजिर है। जी ठीक अगर है आप लोग नहीं, जी माइक अभी माइक एक मिनट एक मिनट एक मिनट माइक म्यूट तो रखे ना, बात तो करने देना, बात तो करने देना, बात मुकम्मल नहीं, बात तो कर मुकम्मल लेने करें देना। जी मुफ्ती साहब को। जी मुफ्ती साहब अच्छा बात करें। बात ये है, अगर कोई और करनी है कि उसने मुझे ये कहा तो मैंने उसको फिर ये कहा तो मैंने ये नहीं, मैं इन झगड़ों में पड़ता ही नहीं हूं। मेरी तरह से भाई ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਕਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵੜਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। जी ठीक हो गया ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਜਨਾਬ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਫਜ਼ੀ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਗੁਸਤਾਖ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਇੰਜ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਭਾਈ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਨ ਫਕਤਲੂਹੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਏ ਜਾ के कदमों पर न चलना। और दूसरा कह रहे हैं कि कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत जो है ये आयत कुरान पाक में मौजूद है, तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया है। ज़रा इनसे बात तो कीजिए ज़रा, शुक्रिया। कौन विक्की साहब है? विक्की साहब आप अहमदी जी हैं? सर, जी सर, विक्की सर जी अहमदी हैं। नहीं, उनको बात करने दें, बात करने दें। विक्की साहब की मैं सुनना चाहता हूं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये बिल्कुल बहुत साफ और क्लियर आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ, विक्की साहब की आवाज नहीं ना आ रही। आप बानी भी नहीं है। ओहो, विक्की साहब बोलेंगे तो फिर ये ना कोई आपको फिर सबूत देते हैं हम, कोई बात करते हैं। आ गए हैं, जी आवाज आ जनाब, रही है? हेलो, हाँ अब आवाज आई है।
जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बंदा दुनिया में आ गया है वो फौत होगा कि या नहीं, जिंदा पहले तो आप समाज ये बता दें कि आप अहमदी हैं, पहले तो मुसलमान बता हूँ। तो देना। आप मैं मुसलमान हूँ। जी मैं मुसलमान हूँ। अहमदी नहीं है आप, मैं मुसलमान हूँ। अहमदी नहीं है आप। मैं मुसलमान हूँ। मिर्जा गुलाम कादियानी को आप कज़्ज़ाब मानते हैं? मुसलमान तो वो होता है जो मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब मानता है। मैं कज़ाब मानता, ये तो आपने अपनी बातें करनी है ना। नहीं नहीं, मुसलमान उसको कहते हैं जो मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब दज्जाल मानता है। क्या आप मानते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी को? आप मुझे ये बता दें कि मुसलमान की तारीफ क्या है? यही तारीफ है कि जो मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल मान। नहीं, ये कहीं पे लिखा हुआ मुसलमान की तारीफ ये है कि जो अल्लाह की तौहीद पे यकीन रखता हो, आप सल्लल्लाहु को आखिरी नबी मानता हो, आप सब किताब को अच्छा, कुरान मुसलमान पाक की को तारीफ आखिरी ये किताब जो आप मानता बता रहे हैं ये कहाँ पे लिखी है? ये कहाँ पे लिखी है? हो। भाई हमने तो ये पढ़ा हुआ है, अल्लाह उसका रसूल कहाँ आखिरी पढ़ा है? नबी, कहाँ पढ़ा है? किसी किताब में तो पढ़ा होगा ना, आखिरी नबी, किसी किताब में तो उसकी पढ़ा होगा आखिरी ना। किताब है। ये जो बातें आपने बिल्कुल, बताई ये हैं, जो आप आपने तारीफ खुद कर रहे बनाई हैं ये ना। कहाँ पे लिखी हाँ, हुई है? ये आपने ना अपने भाई कारोबार चलाने अगर होते हैं ना। मैंने खुद बनाई है तो आपने भी तो खुद बनाई है ना। ये कहाँ पे नहीं, लिखी है भाई, तारीफ जो सिर्फ आप तीन बता रहे बातें हैं, सिर्फ अल्लाह का रसूल और उसकी किताब, मुसलमान वो है। बिल्कुल, ये तारीफ कहाँ पे लिखी है? एक मुसलमान की तारीफ मैंने बताई है, एक तारीफ आपने बताई है। भाई अपने ठीक है, बनाते हो आप ना। अपनी तारीफ का आपने- हवाला दे आपने- दें। आपने- आप कह रहे आपने मैंने अपनी पढ़ी चीज़ है, पुकारी है ना मैडम। आप कह रहे सुने ना, सुने ना, सुने तो सही ना, सुने तो सही ना, एक मिनट। आपने कहा मैंने ये तारीफ मुसलमान की पढ़ी है, तो वही उसका हवाला दे दें, बता दें कहाँ पे पढ़ी है। भाई हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे इतना ही पता है। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे, किसी किताब में किसी दीवार पे लिखी पढ़ी है आपने? कहाँ पे पढ़ी है? बताए विकी साहब। नहीं, मैंने कहाँ पे पढ़नी है? मुझे छुट्टी अपनी ये कहाँ पे वो, बातें कहाँ मैं तो कहीं तो पढ़ी। आप कह रहे बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ी है आपने? तो भाई अल्लाह कहता है, अल्लाह कुरान कहता है ना, मैं तो कुरान को फॉलो अच्छा, करता हूँ। कुरान के अंदर ये मुसलमान की तारीफ लिखी हुई है, वो कौन सी कुरान की आयत में लिखी हुई है? नहीं, आप देखो ना, आप मेरा इल्म काम है। भाई आपसे मैंने पूछा आप अहमदी हैं कि नहीं, आपने कहा मैं अहमदी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मैंने कहा मुसलमान उसको कहते हैं कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल मानते हैं, ठीक है ना। आपने कहा कि नहीं, मैं मिर्जा कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब नहीं मानता। ऐसे ही है ना? आप देखो, आप ऐसे देखो, ही है। आप बातें ऐसे आप नहीं ना मानते मिर्जे को, मिर्जे को दज्जाल और कज़्ज़ाब, मिर्जे कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब नहीं ना मानते आप? मिर्जे कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब नहीं ना मानते आप? मिर्जे कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब नहीं ना मानते आप? नहीं, जिसने हक सर की बात की है, मैं तो उसको दज्जाल नहीं कह सकता। बिल्कुल आप नहीं मानते, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये देखिए, एक मेरी किताब है मिर्जा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ, ठीक है। अब एक झूठ मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुनाने लगा हूं, इस एक पर ही फैसला कर लेते, ठीक है? मंजूर है आपको? हुक्म करें, मंजूर है? कोई नहीं है, मैं सुन लेता ठीक, हूं। चले ठीक है। अच्छा चले, मैं सुनाता हूं, सुने जरा, सुने, माइक म्यूट करिएगा। रूहानी खजाइन है, जिल्द 22 है, सफा 209 के ऊपर। जरा माइक म्यूट करिएगा विकी साहब, शोर आ रहा है पानी का, लगता है लैट्रीन में बैठे हैं आप। हाँ, वो वॉशरूम की आवाज आ रही है। अच्छा, जिल्द 22 है, सफा 209 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मऊद 6000 में पैदा होगा, ठीक है। यार माइक तो म्यूट करिएगा विकी साहब। कर रहा हूं। मिर्जा कादियानी कहता है अहादीसे सहीहा, यानी बहुत सी सही हदीसों के अंदर ये बात लिखी है कि मसीह मऊद 6000 में पैदा होगा। कोई एक हदीस दिखा दे तो साबित हो जाएगा कि मिर्जा कादियानी सच्चा है, उसने ये बात सच्ची की है। अगर आप एक हदीस भी ना दिखा सके, जबकि मिर्जे ने तो बहुत सी सही हदीसें कही हैं, तो साबित हो जाएगा कि मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला है। और झूठ बोलने वाले के बारे में मिर्जा कादियानी कहता है कि झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना, ये कुत्तों का तरीका है, इंसानों का नहीं।
फिर मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। फिर मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। फिर मिर्जा कादियानी कहता है वो कंजर जो वलदुज़्ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मिर्जा कादियानी फिर कहता है झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। अगर तो विकी साहब आप मिर्जे की इस बात को साबित कर दें तो ठीक है, बचत हो जाएगी। फिर अगर साबित ना कर सके तो मिर्जे कादियानी के झूठे इंसान के बारे में लगाए हुए फतवे उसके ऊपर लग जाएंगे। मिर्जा कादियानी कंजर साबित हो जाएगा, मिर्जा कादियानी वलदुज़्ज़ना यानी हरामी साबित हो जाएगा, मिर्जा कादियानी मुर्तद साबित हो जाएगा, मिर्जा कादियानी एक कुत्ता और कुत्तों के तरीक पर चलने वाला साबित हो जाएगा, ठीक है, और मिर्जा कादियानी गू खाने वाला साबित हो जाएगा। जी विकी साहब, अब आप माइक ओपन करिए। जी माशाल्लाह जी, जो आपने अल्फाज ना भी ना यूज किए ना, ये अखलाक के बाहर है। जैसे कुत्ता बोल रहे हैं आप, हरामी बोल रहे हैं, ये वो, देखें ये गालियां नहीं बनती हैं, ये गालियां नहीं बनती हैं। मैं दोबारा पिछली बात पे वापस आता हूँ। मुझे बस इतना बता दे कि ना मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे बताइए मुसलमान कौन होता है, मुसलमान की तारीफ क्या है? अब माइक म्यूट करिए। नहीं मैं नहीं, देखे ना अपनी बात करके माइक म्यूट कर लिया करें ना, फिर मैं जवाब देता हूं ना। नहीं आप गाली नहीं खा रहे हैं ना। अब देखिए मैं अगर बातें माइक म्यूट करेंगे तो जवाब दूंगा, तो क्या मैं चुप हो जाता हूँ? मैं चुप हो जाता हूँ। अब देखिए बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। गालियां मैं निकाल सकता हूँ कि ना बगैर तो ये वो जो आपने अल्फाज माशाल्लाह ना आपने बयान किया ना, तो वो तो आपका ना वो आपकी तरबियत बता रहे हैं, वो आपकी ना अखलाक बता रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हो, देखो मेरी तो बात यही है ना बस कि देखो मुसलमान की तारीफ आप मुझे बता दें कि मुसलमान की तारीफ मेरे लिहाज से ये है कि जो अल्लाह ताला को मानता हो, अल्लाह ताला की तौहीद को मानता हो, आप को मानता हो, और आप की आखिरी किताब क्या है, कुरान पाक है ना, उसको मानता हो। इसके अलावा मुसलमान तो कोई नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब यहाँ पे मेरा भी एक सवाल बीच में एक मिनट के, आपने जिद क्या लगाई हुई है? अगर आप जिद लगानी है आप तो शिया के साथ लगा सकते हो। तो वो देवबंदी हैं आपके, अब उनके साथ जिद लगा कर बैठ जाओ। जो आपने पीछे माशाल्लाह किताबें रखी हुई हैं, जो आप ये काम कर रहे हो, अपनी आप बात करने का स्टाइल तो देखो। हराम दे पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हो, गालियां दे जा रहे हो। माशाल्लाह आपके सुनते नबी आपके मुंह के ऊपर है। अपने अल्फाज देखो, आपके मुंह से गाली बनती है। अभी इजाजत है मुझे बोलने की? जी हुक्म करें, मैं म्यूट कर रहा हूँ। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, ठीक है। ये तरीका कार है। मैं आपको पहले भी कह रहा था मुझे जवाब देने के लिए आपका माइक म्यूट चाहिए, क्योंकि आपने बीच में बोलना है। अब देखिए आपका माइक म्यूट हो गया, अब मैं जवाब देता हूं। आपने कहा कि मैंने गाली निकाल ली है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर तो ये बातें मिर्जे कादियानी की किताबों में नहीं लिखी तो यकीनी सी बात है मैंने गाली निकाल ली है। और अगर वाकई ये बातें मिर्जे कादियानी की किताबों में लिखी हैं तो फिर तो आपको कहना पड़ेगा कि ये गालियां मिर्जे कादियानी ने निकाली हैं। और फिर आपको कहना पड़ेगा कि मिर्जा कादियानी ने दाढ़ी रखी थी, पग बांधी थी, और बड़ी किताबें उसने रखी हुई थी, और बड़ी किताबों का वो मुसन्निफ था। तो दाढ़ी रख के पग बांध के उसको शर्म नहीं आई कि लोगों को गालियां दे रहे? अब मैं हवाले देता हूं, पहले हवाले नहीं दिए थे, अब हवाले दे देता हूं। मिर्जा कादियानी कहता है रूहानी खज़ैन जिल्द 11 और सफा है 43, कहता है झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीक है, ना कि इंसानों का। ठीक है, झूठ बोलना कुत्तों का काम है, ठीक है। ये मिर्जे कादियानी ने कहा है, मुफ्ती मुबश्शिर शाह ने नहीं कहा। ये पहला हवाला। दूसरा हवाला रूहानी खज़ैन जिल्द 22 सफा 459। मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलने से बदतर दुनिया में कोई बुरा काम नहीं। रूहानी खज़ैन जिल्द 17 सफा 56 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं।
ठीक है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 2 सफा 386 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है वो कंजर जो वलदुल ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ठीक है, हवाला सुनते जाइएगा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफा 215 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। अब मुझे बताइए ये गालियां मिर्जे कादियानी ने दी हैं, अब मिर्जे को क्या कहेंगे आप? अब आप वो ही कहेंगे कि नहीं कि दाढ़ी मिर्जे कादियानी तूने 2 फुट की दाढ़ी रखी है मुझे बात कंप्लीट करने दे, बीच में ना बोले, माइक म्यूट कर, माइक म्यूट। जब मैं आपको कहूंगा बोलिएगा। ये गलत काम है, मैं आपकी बात तवज्जो से सुनता हूं, खामोशी से। इतना सब्र तहम्मुल तो रखिए, मुझे बात तो करने दे। अगर ये अपनी किताब के अंदर जो मैंने मिर्जे के हवाले दिए हैं एक हवाला भी गलत साबित कर दे, आप इधर बैठे ही जो सजा तजवीज करेंगे मुझे कबूल है, जो भी जाए, आपको मैं इजाजत देता हूं। ठीक है, इससे बड़ी बात तो नहीं मैं को कर सकता ना, इससे बड़ी कोई सफाई तो नहीं ना दे सकता। मैं कहता हूं एक हवाला भी गलत साबित कर, मुंह मांगा इनाम मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी 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 अभी, ज्यादा दूर नहीं जाना। जब ये सारी चीजें मिर्जे ने कही हैं तो फिर ये साबित क्यों नहीं आप कर रहे कि जो रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफा 209 के ऊपर मिर्जे कादियानी ने कहा था कि अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मऊ 6,000 में पैदा होगा। मैं कह रहा हूं कोई एक दुनिया की हदीस दिखा दें, सही हदीस छोड़ दें, चाहे किसी ज़ईफ हदीस में दिखा दें, तो फिर भी मान लिया जाएगा कि ये मिर्जा कादियानी ये बात ठीक की है, उसने मान लूंगा मैं, जाए आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन अगर आप ना दिखा सके, अभी तक आप दिखा नहीं सके, तो फिर साबित होता है कि मिर्जा कादियानी कंजर है, मिर्जा कादियानी हरामी है। खुद मिर्जे ने कहा है, मैंने नहीं कहा। फिर साबित हो जाएगा झूठे के बारे में जो मिर्जे ने कहा कि झूठा इंसान गू खाता है, अपना गू खाता है, तो फिर साबित होगा मिर्जा कादियानी ने गू खाया। मिर्जे कादियानी ने कहा कि बंदा मुर्तद हो जाता है, तो फिर साबित हो जाएगा कि मिर्जा कादियानी मुर्तद है। जी मेरी बात कंप्लीट हुई, दें इसका जवाब, ये जो बात मिर्जे ने की है। जी करिए माइक ओपन। देखिए ना, दोबारा गाली निकाली है ना आपने, कंजर है, ये है, वो है। हाँ, अगर इस तरह की बात इखलाक में बातें करूं तो वो मुनासिब बनती है? बात कर ले आप, फिर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं उतनी देर असर किताब उठा। अब देखिए, अभी आपने अल्फाज यूज किए ना, कंजर कुंजर, ये आप जो बातें कर रहे हो, मैं इसी बात पर देख रहा हूँ कि मुझे बताओ जरा, मुसलमान कौन होता है? मुसलमान कौन होता है? मुझे पर मुसलमान के तरीके बताओ ना जरा। बात करके मुझे इजाजत दीजिएगा, क्या तुम बोलो फिर मैं बोल लूंगा। मैं जिस बात पे आपको ला रहा हूँ ना, आप उस बात पे आना भी नहीं चाह रहे हैं। मैं तो इस बात पे हूँ भाई, जो दुनिया में आया उसने मरना है, उसने मौत का जायका चखना है। आप लोग किसको बैठे हुए हो? ईसा इस्लाम ने कब आना है फिर? भाई बात करके मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मैंने बोलना है। नहीं, मैं अब जवाब साथ देते रहे, मुझे इतनी बात का जवाब दो, ईसा इस्लाम ने कब आना है? माइक म्यूट कर ले। नहीं, म्यूट नहीं करेंगे। अब देखो ना, हम साथ साथ बात करते हैं ना। मैंने घंटे को लेक्चर आपने सुनना है, मैंने माइक आप म्यूट करेंगे फिर मैं बोलूंगा, ऐसे नहीं। देखो आपने पहले पूरा घंटा बोल लिया, मुझे बस आपने जितना बोलना बोलते जाए। नहीं, मैंने बोला कोई नहीं है, मैंने मुझसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हज़रत ईसा इस्लाम ने कब आना है? कहाँ पे है हज़रत ईसा इस्लाम? कहाँ पे हैं अभी? अब माइक म्यूट करें यार इनका, तो फिर मैं बोलूंगा ना, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, देखिए आप घंटे का दोबारा लेक्चर लगा देना मुझे। अच्छा देखें, अच्छा हज़रत ईसा इस्लाम पे देखें, हज़रत ईसा इस्लाम अल्लाह ताला को प्यारे थे या आप सब प्यारे थे ज़रा?
اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو نہیں اٹھایا, زندہ نہیں اٹھایا, حضرت عیسیٰ میں چک لیا بھی ہیں. کیا سینس بنتی ہے؟ کوئی سینس ہے؟ آخری نبی آپ سے تھے, ہمارے آخری نبی, ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا کیا تو بنتا ہے بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ صاحب کو زندہ آسمان اٹھایا ہو بھائی؟ کیا وہ چیز کیا ہے تھی؟ کیا بات بنتی ہے؟ کیا سینس کیا بنتی ہے؟ آخری کتاب تو وہی ہے نا, قرآن پاک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا قرآن پاک کا کہ میں اس کا نا میں اس کا ایک لفظ پیچھے نہیں ہو دوں گا. تو حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زندہ آسمان پہ اٹھایا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں ذرا. چھوٹی ایک اور بات کرتا ہوں میں. آپ کا موبائل کون سا ہے؟ جواب دیں. آپ کے پاس موبائل کون سا ہے؟ میں مائک میوٹ کریں گے تو میں بولوں گا. نہیں, میں نے نہیں بولنا. نہیں, آپ کا موبائل کون سا ہے مجھے یہ بتائیں ذرا. ہم نے لیٹسٹ ورژن پہ جانا ہوتا ہے نا, جو آخری اپڈیٹ ہے ہمارے پاس قرآن پاک ہے. ہم پچھلی چیزوں پہ نہیں جائیں گے نا. اگر حضرت عیسیٰ السلام دوبارہ آتے ہیں تو ہم حضرت عیسیٰ کو کیوں مانیں گے بھائی؟ آپ کیوں مانو گے؟ آپ کو حضرت عیسیٰ زیادہ پیارے ہیں یا آپ سے زیادہ پیارے ہیں؟ مجھے بتائیں نا ذرا. بھائی ماڈریٹر یا تو خود ان کا مائک میوٹ کر دیں, یہ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے, تو کیا کروں؟ میں یا ٹائم سیٹ کر لیں کہ 2 منٹ یہ بندہ بولے گا, 2 منٹ میں بولوں گا. اگر ماڈریٹر ٹائم سیٹ نہیں ہے تو پھر تکیشائی کر کے خود آپ کو کرنا پڑے گا. آپ ماڈریٹر ہے, کیونکہ میں تو انتظار میں تھا آپ کو. نہیں, میں ماڈریٹ اب نہیں کر رہا, اب میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں. ماڈریٹ آپ نہیں کرنا ہے. جی بھائی, اپنا وکی صاحب 2-3 کام تو نہیں نا میں کر سکتا. وکی صاحب اب آپ نے خاموش رہنا, بات سن لے. اب آپ نے بات پوری کر لی آپ نے. اچھا جی, بات سنیں جی, اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے. دیکھیں, مرزا قادیانی کنجر اور حرامی ثابت ہو رہا ہے, اور یہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں عیسیٰ کو تم زندہ ثابت کر کے دکھا دو. یہ ہے قادیانیت. یہ کہہ رہے کہ تم گالی دے رہے ہو. یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 2 ہے اور صفحہ 386 ہے. یہ دیکھیں ہائی لائٹ عبارت ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے, یہ گالیاں مرزے نے دی ہیں, میں نے نہیں دی. وہ کہتا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اب بتاؤ, میں نے کہا ہے مرزا قادیانی کو کنجر یا حرامی؟ میں نے کہا ہے؟ یہ تو مرزا کہہ رہا ہے, جھوٹے انسان کو کہہ رہا ہے. تو مرزا قادیانی تو جھوٹا ہے نا. آپ نے وہ حدیث ابھی تک نہیں مجھے دکھائی, یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی کتاب میں سے, وہ آپ نے ابھی تک نہیں ثابت کی. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب سے نکال دیں تو مرزا قادیانی اس ایک بات میں سچا ہو جائے گا, بس بات ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو مرزا قادیانی کنجر بھی بن گیا تو حرامی بھی بن گیا. بقول اپنے خود مرزے نے یہ فتویٰ لگایا اپنے اوپر, خود مرزے نے لگایا ہے. میں نے آپ کو حوالہ دکھا دی ہے, یہ دیکھ مرزا قادیانی حرامی بھی ثابت ہو گیا اور کنجر بھی ثابت ہو گیا. اب اوریجنل کتاب سے بڑھ کے تو نہیں میں کچھ دکھا سکتا نا, یہ میں نے دکھا دیا. اب آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب میں وہ بھی دینا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد 8 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 68 ہے اور 68 اور 69, یعنی 68 اور 69. ٹھیک ہے, یہ ہائی لائٹ عبارت ہے, یہ آپ کو نظر آ جائے گی. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وکی صاحب توجہ سے سنیے گا. مرزا قادیانی عربی کے اندر کہتا ہے ھذا ہوا موسیٰ فَتَلَّاهُ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلَىٰ حَيَاتِهِ وَفَرَضَ عَلَيْنَا أَن نُّؤْمِنَ بِأَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ. اور ترجمہ بھی خود ہی لکھا ہے نیچے, کہتا ہے یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے.
मिर्जा कादियानी कहता है कि कुरान के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है, वो आयत मौजूद है। क्या लिखा हुआ है? कि वो जिंदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या है? जिंदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या है? जिंदा है। और हम पर फर्ज हो गया है कि हम इस बात पर ईमान लाएं। वो कहते हैं ये फर्ज है कादियानियों के ऊपर कि कादियानी इस चीज को माने कि कुरान के अंदर मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा नहीं, हजरत मूसा जो पहले आए थे, हजरत ईसा से भी पहले, वो कुरान के अंदर मौजूद है कि वो जिंदा मौजूद है, कि वो आसमान में जिंदा है। कहाँ? आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और मुर्दों में से नहीं, वो मुर्दा नहीं है, वो मुर्दा नहीं है, उनकी कोई कब्र नहीं है, वो मरे नहीं है, वो जिंदा आसमान में मौजूद हैं। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है। दुनिया के हर कादियानी के ऊपर फर्ज है कि इस पर ईमान लाए। मुझे बताइए, अभी आप कह रहे थे कि ये तौहीन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा माना जाए, कहां पे लिखा हुआ है? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये तौहीन नहीं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे माना जाए और आपके ऊपर फर्ज है? और कुरान की वो कौन सी आयत है कि जहां पे लिखा हुआ है? वो कुरान की आयत मुझे आपने दिखानी है, लाजमी दिखानी है, ठीक है? और अब दो बातों के जवाब आपने देने हैं। ये नहीं है कि आप इसका जवाब दें उसको छोड़ दें, ना, ऐसे नहीं। मिर्जे कादियानी ने जो झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद वो मुर्तद हो गया, वो हरामी हो गया और कंजर हो गया और उसने गूं खाया, तो उसको आपने इस सारे काम से बचाना है, किसी तरीके से बचाना है, ठीक है जी? चलें जी, अब आपका टाइम शुरू होता है, अब आप बोल सकते जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, ठीक है? मेरा दीन मान के है भला। मैं आपको अपना अकायद बताता हूँ कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को मानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। इसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। अल्लाह ताला की आखिरी किताब थी कुरान पाक, मैं उसको मानता हूँ। जो आपने जो ये स्टोरियाँ सुना रहे हो ना, ये आपकी स्टोरियाँ चल रही हैं क्योंकि ना आपने अपना कारोबार चलाना होता है ना, आपने बातें चलानी होती है। जैसे आपने पीछे किताबें रखी हैं, मैं देख रहा हूँ पीछे है, वो आपका ना कारोबार चलना चाहिए ना बस। हमारा कादियानियों का, हमारा एमटीओ का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? हमारा सिर्फ ये दीन मान है कि जो दुनिया में आया ना, जो दुनिया में आएगा वो ना मौत का मजा चखेगा। इसके आगे पीछे मैं कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है? ना मैं आगे पीछे हटूंगा। हाँ, अगर आपने इस बात को ज्यादा बढ़ाना है तो मैं तो फिर वो दोबारा बात करूंगा। अगर ईसा इस्लाम को अल्लाह ताला ने क्यों उठाया? फिर आपसे तो उठाते ना फिर फिर आखिरी टाइम पे, फिर आखिरी टाइम के ईसा को ना लाते, वो आप सल्लम को ले आते। वो हमारा आखिरी नबी, बेशक हमारा आखिरी नबी, हमारा प्यारा नबी, हमारा आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पे दुनिया खत्म, हर चीज खत्म, मेरा प्यारा नबी वही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मेरा उस पे यकीन है, उसकी सुन्नत पे यकीन है और अल्लाह ताला पे यकीन है। ये हम है और ये मेरा ईमान है। आपने जो बातें करनी है की, जो, क्योंकि आपने कारोबार चलाना है ना, आपने अपनी बातें करनी है। आपने देखो ना, आप लाजवाब हो गया ना, लाजवाब हो गया ना। देखो हमारा ईमान यही है। हम तो नबी को मानते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं, आप सबको मानते हैं। बस हमारा आखिरी नबी, हमारा आखिरी प्यारा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा प्यारा नबी, मेरा आखिरी रसूल वही है बस। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? जितनी ज्यादा बहस की जानी है आपने की जाओ। आपने पता नहीं कहाँ से ये बातें सुनी हुई हैं कि ये मरतई ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे नहीं पता आपने कहाँ से सुन ली है ये बातें, ठीक है? विकी साहब आपकी बात पूरी हो गई है। विकी साहब आपकी बात पूरी हो गई है। हाँ जी, कोई जवाब नहीं दे रहे आप, जो लामा साहब माइक म्यूट कर दें ना, तो फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं नहीं, देखिए बात बनती ना है क्योंकि अभी बात की चलो माइक म्यूट कर जाएगी। हाँ चले माइक म्यूट करें, फिर एक मिनट जवाब देते हैं वो जो आपने बातें की। ठीक ठीक है, ठीक। देखें जी, सबके सामने माइक म्यूट हो। देखें, ये कादियानी बैठा हुआ है, विकी सियाल
के नाम से कादियानी मुरब्बी, वो उसके सामने हमने साबित किया है, इनकी किताबों से साबित किया कि मिर्जा कादियानी कंजर है, वलदुल हराम है, हरामी है, मुर्तद है, मुर्दार खोर है, कुत्तों की तरीक पर चलने वाला है, गू खाने वाला है। लेकिन ये मिर्जा कादियानी को यार माइक म्यूट करें, नहीं गलत बात है, मेरी बात में ना बोले, मैं आपकी बात में नहीं बोलता, मैं माइक म्यूट करें इनका, भाई इनका माइक म्यूट करें, गलत बात करें मुझसे, क्या मसला है। अब उसने कहा है कि भाई मिर्जा कादियानी जाए बाढ़ में मेरी बला से, वो कंजर है कंजर रहे, मुर्तद है मुर्तद रहे, हरामी है हरामी रहे, गू खाता है गू खाने वाला रहे, हाँ जी वो मुर्तद होता है मुर्तद रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, वो जाए बाढ़ में। हाँ जी साड़ दियो मिर्जा कादियानी नू, हाँ जी बस मुझे किसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करके दिखा दो। हाँ जी मैंने फिर कादियानी को हवाला दिया है रूहानी खजाइन का, जिल्द 8 का और सफ़ा 68 और 69 का, जहां पे मिर्जा कादियानी कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि वो जिंदा आसमान पे मौजूद है, वो मुर्दा नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, कादियानी की सुई एक जगह अटकी रहेगी, ये है कादियानियों का तरीका होता है। ये इनकी सुई एक चौंक एक सुई एक जगह अटकी रहनी है। मिर्जे की जात पे बात करो, कादियानी के पास कोई जवाब नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई सवाल करो, ये जैसे मैंने किया, कोई जवाब नहीं है। दीगर जो जितनी ये पूरी किताबें, पूरी किताब के एक एक सफे एक एक लाइन पे बात करके देख लो, कादियानियों से नहीं बात करेंगे। इनकी सुई एक जगह अटकी रहनी है। इन किताबों को जला क्यों नहीं देते तुम लोग? ये रूहानी खजाइन को किसी चौराहे में चौक में रख के आग क्यों नहीं लगा देते तुम लोग? बताओ। अगर ये किताबें झूठ है, फ्रॉड है और ये गलाजत का ढेर है, तो इनको जला क्यों नहीं देते, ऐलान क्यों नहीं करते कि इन किताबों से कोई लेना देना नहीं है कादियानियत का? ये मिर्जे ने बकवासियात पे मबनी ये किताबें लिखी हैं, क्यों नहीं ऐलान क्यों नहीं करते? देख ले फिर किताब लिखी है मैंने, ये कोई बहुत बड़ी कोई किताब नहीं है, चंद सफात के ऊपर मुश्तमिल किताब है, और किताब को लिखे भी को 15 साल हो गए। और इसका सिर्फ पहला झूठ ये मैं हाईलाइट कर दूं, ये झूठ नंबर 1, सिर्फ झूठ नंबर 1, ये देखें, ये झूठ नंबर 1 अभी सुनाया है, अगले झूठों की तो बात ही छोड़ दें। सिर्फ झूठ नंबर 1, पहला झूठ, उसका जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है। तो क्या साबित हुआ कि ना हुआ कि मिर्जा कादियानी कंजर है, मिर्जा कादियानी कुत्तों की तरीक पर चलने वाला था, मिर्जा कादियानी मुर्दार खोर है, मिर्जा कादियानी हरामी है, मिर्जा कादियानी मुर्तद है, मिर्जा कादियानी जो है वो गू खाने वाला है। ये साबित हुआ कि ना हुआ है? बताए। इसको आप अगर गालियां कहते तो ये गालियां खुद मिर्जा कादियानी ने अपने आप को दी हैं। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई देखे ना आपके पास क्यों बोल रहे हैं बीच में, क्यों बोल रहे हैं? जब आप बोलते हैं जवाब तो आपके पास कोई होता नहीं है। मैंने आपको कहा है बोलने, अब तड़फना शुरू हो गए हैं आप। जवाब देना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? जी दे जवाब, अब माइक ओपन करें, दे जवाब। अब मिर्जे को आपने हरामी होने से बचाना है, मुर्ताद होने से बचाना है और कंजर होने से बचाना है आप। देखिए अब मिर्जे की बात छोड़ दो, मैं इतनी बात छोड़ दो, मुसलमान क्या है, छोड़ दो जी। लो जी मिर्जे कादियानी नु अग ला दीजिए थे हुने ले मिर्जे नु अग ला दी, और तेनू गल कोई नहीं आ रही, अग ला दीजिए मिर्जे नु, और तानू कोई गल नहीं आ बताइए तो सही ना। मिर्जे को छोड़ देते हैं, मिर्जे को आग लगा दे इधर, मुझे मिर्जे कादियानी को आग लगा दे तो जूतियां मारे उसको। मुझे आप इस बात का जवाब दे दो, हज़रत ईसा साहब ज्यादा प्यारे थे अल्लाह पाक को या आप? हज़रत ईसा बस पहुंचो के खोती बोर्ड थल्ले कादियानी की एक ही बात रहती है, खोती बोर्ड थल्ली होती नहीं, खोती अल्लाह ना खैर करना सानू मिर्जे नाल कोई ओदी भैन नु ओ जेड़ा लफ्ज बोलता है असद है, असद है की लफ्ज बोलता है तू बोल, दाढ़ी रख के मुंह ते कह रहे हैं कि ओदी भैन नु असद। जी शाह जी वो कहंदा मिर्जा साहब दी भैन नु या वो तुसी मेरे नाल गल करो। नहीं कितनी गलत बात है, दाढ़ी रख के कौन कहता है? असद ये भी बताइए कौन कहता है?
नहीं देखें, नहीं जनाब अली गाली निकाल ली सदर उन्होंने। कौन कहता शाह है जी इसको? ये कादियानियों का एक बड़ा महान मुरब्बी है, शाहिद मुरब्बी। शाह जी वो कहता है ये शाहिद, मलक शाहिद। नहीं जनाब अली में छोटी बात ये बात समझा दो बस कि आपको जो अल्लाह ताला थे। नहीं आप भी असल में वो ही कह रहे हैं जो मलक शाहिद ने बात की है कि मिर्जा साहब दी भैन नू हैं। नहीं आप देखो ये अभी- करो। नहीं जनाब अली, नहीं जनाब अली आप देखो भी ना, तो वही कह रहे हैं कि मिर्जे कादियानी को छोड़े। आप भी तो सुनते- वही बात कह सुनते- रहे हैं मिर्जे को छोड़े। सुनते आपने भी नबी बात भी कही आपके है कि नहीं मुंह पे मिर्जे को छोड़े? हैं? आपने ये बात की सुनते- है कि नहीं मिर्जे को छोड़े? सुनते नबी भी आपके मुंह पे है हैं? मिर्जे सुनो को तो आप आपके मुंह पे कंजर है। और हरामी होने से गाली- बचाना है आपने। टेल गाली लाओ ना जरा, निकालो। टेल लाओ। नहीं, गाली- मिर्जे नु गाली कंजर ना ते वलदुल हराम ते हरामी होने तो बचाना है। बचाओ। नहीं गाली गाली मैं मैं भी वेदना निकाल मत भी आज सकता हूँ। किंज बचाते हो। देखिए ये फर्क मिर्जे हो को गया ना। कंजर होने से फर्क बचाना है है आप। ये हवाला यार- दिखा दे कहाँ पे है, यह हदीस दिखा दे। मुझे अब ये हदीस हवाला दुनिया दिखा की दे कौन कि सी ये किताबें इतनी हदीसों की मुझे रखी आप हुई ये हैं। हवाला कि दिखा कोई दे मुझे बताए कोई एक मुझे कोई एक आप किताब मुझे दिखाइए, मैं अभी निकालता हूँ। बताएं मुझे मुझे आप ये हवाला बताएं बस कहाँ पे बता दें लिखी कि गई ये हदीस? आपको बताएं ये कहाँ पे कौन सी? ये इतनी किताबें रखी हैं, कोई एक किताब बताएं, मैं निकालता हूँ। हजरत ईसा सलाम जी। को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़े, ये हदीस दिखाए कहाँ पे है? क्योंकि अगर ये आप नहीं दिखाते तो मिर्जा कादियानी मुर्तद, कंजर और हरामी साबित कर रहे हैं। आप खुद साबित कर रहे हैं कि मिर्जा कादियानी हरामी है। क्योंकि मिर्जा कादियानी ने फतवा दिया हुआ है कि झूठा इंसान जो होता है वो हरामी होता है, वो कंजर होता है, कंजर। ये मिर्जा कादियानी का फतवा मैंने आपको अभी दिखाया है, ये रूहानी खजान जिल्द 2 के अंदर अभी दिखाया है। आपने किसी तरीके से मिर्जा कादियानी को कंजर बनने और वलदुल हराम बनने से बचाना है। जी कोशिश करें। ये देख अभी मैंने आपको ये हाईलाइट इबारत करके दिखाई है और जिल्द 2 में और सफा 386 है। मिर्जा कादियानी कहता है वो कंजर जो वलदुल जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मिर्जा कादियानी को कंजर और हरामी होने से बचा लीजिए, मेहरबानी करें। जी विकी साहब, मिर्जा कादियानी को बचाइए, बुराए करम, मेहरबानी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं किसी तरीके से मिर्जा कादियानी को कंजर और वलदुल जना होने से बचाना है आप। जी विकी साहब बोलिए। विकी साहब कोशिश करिए, थोड़ी सी कोशिश करके तो देखें, हो सकता है मिर्जा कादियानी कंजर होने से बच जाए या हरामी होने से बच जाए। जी विकी साहब बोलिए। विकी साहब मैं आपके साथ हूं, कोशिश करिए। मिर्जे को कंजर होने से वलदुल जना होने से बचा लीजिए। नहीं अल्लाह अगर ये आप दिखा दें कहीं पे कि अहादीस सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौद 6000 में पैदा होगा, ये अगर आप दिखा देते हैं तो मिर्जा कादियानी बच जाएगा यकीनन। मेरा सवाल ये है कि देखें आपका मोबाइल कौन सा? मेरा मोबाइल ढिला मट्ठा जा मोबाइल है, बल्कि खराब हो गया है। केड़ा मोबाइल है? आप कोई जल्लाश से दुआ करें ना, कोई है कोई आईफोन सानू भी लभ जाए, नहीं तो जल्लाश से दुआ करें ना, क्योंकि मिर्जे ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं ताड़ा ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ, request ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ। हाँ ताड़ा मोबाइल केड़ा है? ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਸ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜ ਕੁਝ। केड़ा माड़ा नाम दसो ना, केड़ा मोबाइल? ਯਾਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੇਖੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ नहीं मेरी है। नहीं फर्ज करो ना। अच्छा बात यह है कि देखो, तो देखे अभी विकी देखे प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं। आप अच्छे इंसान हैं, क्या मिर्जा कादियानी को कंजर और हरामी होने से नहीं बचाना आपने? देखो, गाली ना निकालो। आपका दिल नहीं करता कि मिर्जा कादियानी गाली ना- हलाली साबित हो गाली जाए? ना- नहीं गाली नहीं ना निकालो। नहीं गाली मैं नहीं दे रहा, और मैं नहीं दे रहा। मैं कब दे रहा हूँ गाली? कौन सी गाली दी है मैंने? इखलाक से ना गिरे। कौन सी गाली दी है? इखलाक बताएं। से ना गिरे। मैंने कौन सी गाली दी है? बताए कौन सी गाली? दे ही लो तो आप बताएं कौन सी गालियां गाली दे दी रहे है? कौन सी गाली बताए तो सही, कौन सी गाली, कौन सी गाली दी है? हो। बताए ना। कुंजर पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हो। वलदुल जना और कंजर कहना ये गाली है? वलदुल जना और कंजर कहना गाली है? बताइए ना, वो बोलते क्यों नहीं यार, क्या मसला है? वलदुल जना और कंजर कहना गाली है? ये मिर्जे कादियानी ने कहा है, मैं नहीं हमारी कहा। हमारी हमारी इस ये बात देख- बात ही नहीं है, हैं? हमारी इस बात भाई- बात ही नहीं है। मुझे भाई मुझे इस अगर बात ये का जवाब गाली दो। है तो ये तो मिर्जा कह रहा है, ओ, मैं मेरे तो भाई, नहीं कह रहा, मेरे मैं तो भाई, नहीं कह रहा। मेरे भाई, हम्म, मेरे भाई इस बात का मुझे जवाब दो
کہ حضرت عیسیٰ السلام اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں آپ پیارے یہ تھے بار یا بار آپ؟ مجھے الزام کیوں دے رہے کہ تم گالیاں نکال رہے ہو؟ نہیں پہلے تو اس بات پہ بات کر لیں. آپ مجھے بار بار دی کیوں کہہ جا رہے رہے کہ ہو تم گالیاں دے رہے ہو؟ دی جا رہے ہو آپ. میں نے کون سی میں کہا؟ تم نہیں کہہ رہا. میں تو روحانی میں تم خزائن نہیں پڑھ کہہ کے رہا. سنا رہا ہوں. میں تم نہیں کہہ رہا. نہیں میں نے ابھی تک تم نہیں میں بھی بولا. آپ جناب کر کے بات کر رہا ہاں ہوں. میں آپ کر آپ کے بات. بار بار مجھے الزام دے رہے ہیں. مجھے بتائیں میں نے کون سی گالی دی ہے؟ بتائیں. یہ آپ کی کنجر تعلیم کا ہے یہ یہ گالی آپ کی ہے؟ تعلیم ہے. حرامی کہنا یہ گالی ہے؟ بتائیں گالی ہے. بتائیں تو صحیح. کنجر گالی ہے. کہنا اور حرامی کہنا گالی ہے؟ گالی ہے. بتائیں. گالی تو یہ گالی تو مرزا نے لکھی ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتابیں یہ اللہ معاف کرے یہ کتابیں آپ نے خود وہاں پکڑی ہوئی ہیں. یہ کتابیں میں نے لکھ کے دی ہوئی ہیں وہاں پہ. ہاں اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں بھی ہماری ہیں؟ او بھائی تم لوگ جو مرضی کرتے پھرو. مطلب یہ مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں ہیں یہ؟ تم لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے. اچھا وہی مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ہی ہیں یعنی مرزے کی کتابیں نہیں ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ لوگوں نے خود بنا لی ہوں گی. اچھا خود بنا اوئے ہوئے. ہاں. اچھا وکی اب مجھے بات سمجھ آئی ہے. وہ ایک منٹ ہے. اچھا وکی ایک کام کرتے ہیں آپ لوگوں کی آفیشیل ویب سائٹ کون سی ہے؟ MTA. MTA وہ الاسلام.org یہی ہے نا؟ یا ایگزیکٹلی. الاسلام.org ہی ہے نا؟ یا ٹھیک ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک کام کیوں نہ کریں ہم دونوں مل کے؟ ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ میں اوپن کر لیتا ہوں. آپ تھوڑا سا مجھے انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ہاں کریں یہ لیں. بس. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. آپ تھوڑا سا انتظار کریں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دیکھیں یہ میں نے لکھاؤ. یہ بھائی سن بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ نا ٹھہر جائیں. تھوڑا سا آپ کو انتظار اور کرنا پڑے گا. یہ کیمرہ نہ الٹا ہو گیا تھا. یہی ویب سائٹ ہے نا آپ کی؟ یہی ہے نا؟ بولے تو صحیح نا یہی ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی. چلے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر. اب یہاں پر میں یہ کتب سلسلہ کے اندر جاتا ہوں. ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے لگا ہوں. یہ دیکھ کلک کر دیجیے. اب یہاں پر میں مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر جاتا ہوں. یہ دیکھیں کلک کر دیجیے. ہاں یہاں پر میں روحانی خزائن کے اندر جاتا ہوں. یہ دیکھیں کلک کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پر میں اب یہ تھی جلد 2 روحانی خزائن جلد 2 ہے. اور ایک منٹ ذرا یار روحانی خزائن جلد 2 آپ نے پیچھے سب لگا ہے. ایک منٹ یار تھوڑا سا صبر تو کر لیں یار. کیا مسئلہ ابھی ہے؟ آپ یہ نے شاہنائے حق بھائی ایک منٹ ذرا یار تھوڑا مجھے ٹائم تو دے دو نا یار. شاہنائے حق ٹھیک ہے نا؟ اب شاہنائے حق میں یہ ہے شاہنائے حق. ٹھیک ہے کیمرہ اس کا خراب ہے موبائل کا تو بہرحال گزارا کر لینا. یہ شاہنائے حق اس پر کلک کرتا ہوں. بھائی کوئی بات نہیں کوئی بات. تو آن لائن اس کو سٹڈی کرتے ہیں آن لائن. ٹھیک ہے آن لائن پہ کلک کرتا ہوں. جب آن لائن پہ میں گیا تو اس کے صفحہ نمبر میں نے 386 کے اوپر جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ 386 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ نہیں. یہ نیچے یہ صفحہ میں 386 اب لکھتا ہوں. 386 یہ انٹر دبایا 386 لکھ کے تو یہ صفحہ بھی آ رہا ہے. یہ 72 آ گیا. چلیں آگے جاتے ہیں. اللہ اکبر تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اصل میں یہ 377 آ گئے. 386 پر جانا ہے ہم نے اور دیکھتے ہیں کہ آیا ہم نے یہ اپنی طرف سے لکھی ہے کہ واقعی یہ مرزا قادیانی کی عبادت. 383 آ گئے. یہ آ گیا 386. اب یہ دیکھو ذرا یہ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. ہاں اب بتاؤ یہ گالی مرزے نے دی ہے کہ میں نے دی ہے؟ جی اور یہ بھی بتانا کہ یہ کتاب میری تھی. تم کہہ رہے تھے یہ کتابیں تمہاری اپنی ہیں. اب تم بتاؤ کہ یہ کتاب تمہاری ہے کہ میری ہے؟ جی بولیں جی. وکی صاحب دی بولتی بند ہو گئی ہے بھائی. نہیں باقی
मुझे इस बात पर वाकई बोलती बंद हो गई है ना? हाँ नहीं बाकी अब मुझे बताएं यार, विकी आप अच्छे इंसान हैं, ये गालियां देना अच्छी बात है? कोई कंजर कहना, वलदुज़ना लोगों को कहना अच्छी बात है? बताएं, बताएं तो सही ना यार, कुछ तो बताएं। ये अच्छी बात है लोगों को कंजर और वलदुज़ना कहना, हरामी कहना? बताएं तो सही ना। ये गालियां, ये क्यों मिर्जा कादियानी क्यों गालियां निकालता रहा लोगों को? बताएं तो सही विकी साहब। विकी साहब खुदा दे वास्ते बोलो यार, आज ना ना बोले तुसी विकी साहब, आज ना ना बोले तो कादियानियत मुंह की खाएगी और झूठी साबित हो जाएगी पूरी। ये अल्लाह माफ करे, विकी साहब बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं देखें जी, ताक़यामत झूठी साबित हो जाएगी। बोले बताएं, ये मिर्ज़ा कादियानी ने लोगों को ये गालियां क्यों दी? ये गालियां क्यों दी? ये गालियां क्यों दी? ये गालियां क्यों दी मिर्ज़ा कादियानी? गालियां ऐसी हैं ना जैसे 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 आप दे रहे हैं। अच्छा पहले तो आप ये बता दें, आप तो कह रहे थे कि ये किताब तुम्हारी है, तो अब तो ये किताब तुम्हारी निकल आई है, हैं? भाई जैसे तो आपने और मिर्ज़ा कादियानी ने, मैंने कौन सी गाली दी है? फिर वो ही पहुंचो के खोती बोर्ड थले, खोती बोर्ड थलियां दी, मैंने कौन सी गाली दी है? अच्छा ये मसाज में सेट कर लिया। तो मैंने कौन सी गाली, मैंने कौन सी गाली दी है? बताएं, मैंने कौन सी गाली दी है? मैंने कौन सी गाली दी है विकी साहब? मुझे इतनी गालियां दी हैं, मुझे इतनी मैंने कौन सी गाली दी है? आगे वो कंजर और वलदुज़ना ही बोला है, वो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है। मैंने कौन सी गाली दी है? बोले ना विकी साहब, बोले यार। पहले तो आप बड़बड़ बोल रहे थे, अब क्या हुआ है? नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस हो गई। नहीं बस क्यों नहीं है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बस क्यों नहीं है मुझे? अच्छा ठीक है, अब इस बात पे आते हैं। अब मैं एक बात करता हूँ, ठीक है? मैं कादियानी हूं, ठीक है? मुझे आप मुसलमान कहा, आपको मुसलमान, आप मेरे पीछे पीछे लफ्ज बोलिए, आप मुसलमान हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है। बोलिए कि मैं अकीदा खत्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ। ले 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 नहीं बोलने के तो फिर ये ना मुसलमान होंगे ना। पहली शर्त कलमा होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। अच्छा चले कलमा, चलो कलमा पहले, चलो कलमा। अब देखे ना, आप अपने लुक में मेरे मुंह में घुसेड़ते जाएंगे तो जो आप कहते हैं फिर मैं नहीं, ये कलमा, ये देखो ना कलमा मुसलमान आपने शराइत पहले है। मुझे कहा है कि तुम मुझे मुसलमान करो, तो फिर मेरे लफ्ज़ ही बोलने पड़ेंगे ना आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह बात मोहम्मद। ये है कि अगर आपको इतना ही पता है तो आप खुद क्यों नहीं वो मुसलमान हो गए? जब आप मुझे कह रहे हैं जी तुम मुझे मुसलमान करो, तो भाई फिर मेरे लफ्ज़ बोलने पड़ेंगे ना आपको। नहीं अच्छा मैं किसी और बंदे गाली निकालूं? अच्छा मैं बैठ जाऊं वहां ना जो वो है सब। भाई अभी आपने कहा कि नहीं कि तुम मुझे मुसलमान करो, आपने कहा है कि नहीं? हाँ, करो, आपने करो, कहा है कि नहीं मुझे मुसलमान करो? हाँ, तो आप लफ्ज मेरे ही होंगे कि आपके होंगे? बताएं। नहीं लफ्ज ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, वही बोल रहे हैं कि मैं खत्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ। नहीं पहली शरायत तो ये ना, अल्लाह की तौहीद पे ये देखना पहुंचो के खोती बोर्ड थले, मतलब आप अपने अल्फाज मेरे मुंह के अंदर घुसेड़ना चाहते कि ये बोलो मुसलमान ये होता है। पता तो आप खुद क्यों नहीं मुसलमान लफ्ज कह के मुसलमान हो जाते हैं? मुसलमान वो होता है जो पहले अल्लाह को मानता है, फिर अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल को मानता है ना, और फिर पढ़ता है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान तो वो होता है ना। बेहतरीन कौन सी बातें कर रहे हो? नहीं पहले ये है कि इधर देखिए, पहले कोई तौबा भी होती है कि नहीं होती विकी साहब? कलमा तो बाद में। देखिए एक बंदा, एक मिनट सुन तो लेना, सुन तो लेना तो यार, लफ्ज सुनते ले और सुनते ले मर जा की होगी। चुप ते कर, जरा माइक म्यूट कर, चुप करके सुनी तो भी तो ਹੁੰਦਾ है ना। देखो ये वे ना पता है क्या गल सच्ची करा भाई, सुन तो लो, फिर आप कहते हो ना और सुन तो ले मर जा यार, की हो गया? तो केश ही करनी पेगी, माइक म्यूट करना पेगा, की करना है यार विकी? एक पहले ना जो बंदा कुफर कर रहा होता है ना, उस कुफर से तौबा करवानी पड़ती है, कलमा बाद में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? तुम देखो मिर्जा कादियानी कज़ाब, दज्जाल, हरामी, और जो साबित हुआ है वो अभी वलदुज़ना और मुर्दार खोर और मुर्तद और कुत्तों के तरीक पे चलने वाला और गू खाने वाला। तो जब इससे तौबा करोगे ना कि मैं लानत डालता हूं इस हरामी और कंजर के ऊपर, मिर्जा कादियानी के ऊपर, उसके बाद मैं तुम्हें कहूंगा कि कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये है तरीकाकार। अभी गुनाह तुम्हारा उधर ही है, मतलब गुनाह तुम इस कंजर को और हरामी को अभी तक अपना मसीह मान रहे हो, वो उधर ही है।
और साथ ही मैं तुम्हें कलमे पढ़ाता रहूंगा। उस लोग क्या कलमे का करते कोई हो? फायदा होगा बताओ? तुम लोग क्या करते हो? एक मिनट, उस कलमे का उस कलमे का यार माइक म्यूट करना यार, एंजनी माइक म्यूट। अभी तुम उस कंजर को कंजर नहीं मान रहे, जो खुद बकलमे खुद कंजर साबित हो गया। उस हरामी को हरामी नहीं मान रहे, जो बकलमे खुद हरामी साबित हो गया। मैंने अभी कर दिए, और साथ कलमे पढ़ते जा रहे हो। कलमों का कोई फायदा होगा बताओ? वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊपर झूठ बांध मेरा है। कलमा हदीस है भाई हाँ। तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में लिखी हुई है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हजूर ने फरमाया, जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की, उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। तुम्हारा मसीह मौत तो जन्मी साबित हो गया अभी बैठे बैठे, कि तुमने एक हदीस भी उसकी अभी नहीं दिखा सके। एक मैंने पढ़ी ही एक है कि हदीस सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौत 6000 में पैदा होगा। तो वो जन्मी है, उस जन्मी को तुम मान रहे हो अपना मसीह। यार कोई अकल है कि नहीं तुम लोगों में? अकल है कि नहीं बताएं जी, जवाब दें। माइक ओपन करिए, जवाब दीजिए। हाँ जी, देखें फिर दोबारा मैं बात करूंगा कि हमारा दीन ईमान इस बात पे है, अल्लाह का नबी, अल्लाह का आखिरी रसूल आप सल्लम। तो यार मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते विकी? मैं कुछ पूछता और तुम ले कहीं और जाते हो। आप देखो, आप नहीं, मेरे सवाल का क्यों नहीं जवाब? मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी हदीस सुनाई, हजूर ने फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी तरह झूठ की निस्बत करता है वो जन्मी है, वो उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बनाए। और तुम्हारा मिर्जा नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़े झूठ उसने बांधे हैं, तो वो तो जन्मी है। तो मुझे बताओ, उसको जनती कैसे साबित करो? मिर्जे कादियानी को और मिर्जे कादियानी को जनती कैसे साबित करोगे बताओ? नहीं, जनती इंसान की औकात नहीं होती कोई किसी को जनती साबित कर सके। नहीं, मिर्जा कादियानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांध के वो जन्मी साबित हो गया। अपने ही दिए हुए फतवों के तहत वो हरामी साबित हो गया, मुर्तद साबित हो गया, कंजर साबित हो गया, सब कुछ साबित हो, गू खाने वाला साबित हो गया। तो तुम ये क्यों नहीं, ये या तो ये हदीस ही दिखा दो ना कहीं से, तो ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। मिर्जा कादियानी सच्चा साबित हो जाएगा, मिर्जा कादियानी कंजर नहीं रहेगा, मिर्जा हरामी नहीं रहेगा, मिर्जा कादियानी जन्नत से निकल के जन्नत में आ जाएगा। क्यों नहीं कर रही है तुम बताओ? हाँ भाई, नहीं, आपने ना बकवासियात करनी है बस, और कोई आपका काम कौन सी बकवास की है बताएं? कौन सी बकवास की है? आपने बकवासियात ही करनी है ना। देखो, मैं बार एक ही बात बताएंगे कौन सी बकवास की है। मैं खींच के ये झूठ बोल के मिर्जे ने फतवा दिया था, जो झूठ बोलता है वो कंजर होता है और हरामी होता है। तो ये झूठ बोल के मिर्जा कंजर और हरामी हुआ क्या? मैं दोबारा एक ही बात करूंगा, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, उसकी आखिरी किताब। मतलब मिर्जा कंजर रहता है, कंजर रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बात? मिर्जा हरामी रहता है, हरामी रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, गाली ना निकालो, गाली नहीं भाई, ये देखो ना, ये आपके सामने मौजूद है, ये आपके सामने मौजूद है। और मैंने जी क्या, ये जिल्द 22 भी दिखाऊंगा आपको, जिल्द 22। चलो मैं जिल्द 22 माशाल्लाह पीछे किताबें जिल्द 22 जिल्द 22 दिखाता हूँ यार, और जिल्द 22 दिखाता हूँ, सफा 209 दिखाता हूँ आपको, सफा 209। जवाब ही नहीं है आपके पास, कोई जवाब ही। ठहर जा, ओए ये हाईलाइट बात क्या है? तुम लोगों की बात मिर्जा कादियानी कहता है, हदीस सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मऊद 6000 में पैदा होगा, मसीह मऊद 6000 में हदीस सहीहा। ये देख लो, ये आपके सामने, ये मैंने अपनी तरफ से बात की है। बताएं ना, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? नहीं, किसी पे आपने ईसा को लेके आना था दोबारा, कहाँ पे है फिर? तो भाई इसका क्या करना है? ईसा अलैहिस्सलाम को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना। तुमने हजरत मूसा का कोई जवाब दिया है कि मिर्जा कादियानी कहता है कुरान के अंदर लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे मौजूद है, उसका कोई जवाब नहीं तुमने दिया। उसको भी छोड़ दो, उस मौजू को। इस कंजर का कुछ करो, इस हरामी का कुछ करो, इसको हरामी होने से बचाओ, इसको कंजर होने से बचाओ, इसको मुर्तद होने से बचाओ, इसको खून खाने से बचाओ। फिर गाली नहीं, मैं गाली मैं नहीं दे रहा, ये मिर्जे ने खुद कहा है,
मैं नहीं दे रहा, मैं गाली नहीं दे रहा, ये मिर्जा ने खुद कहा है, ये तुम मिर्जा लोग ने वहां खुद पे कहा ना है। बुंडे मैं मारते आपको हो हवाले हैं? दिखा चुका हूं। बच्चों की तुम लोग बुंडे मारते हो हैं? तुम लोगों को ये है। आ गया ना कादियानी, अपनी औकात पे आ गया ना। आखिरी बात ये थी, ये आखिरी बात कादियानियों की ये होती है कि तुम वो मारते हो हैं, आखिरी बात ये होती है। ये आ गया ना नहीं करते। अपनी औकात पे, डिबेट एंड हो चुकी है, डिबेट एंड हो चुकी है, ये डिपेंड है, ठीक है। एंड सारे कोई नहीं है। इसकी एंड देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लोगों ने सब देख लिया है। लोग इतने काके नहीं है, वो हकायक सब जान जाएंगे, वो देख लेंगे। जो हवाले हमने दिए हैं वो तुम्हारी किताबों में जाके देखेंगे, और तुम्हारी औकात भी देख लेंगे कि कादियानी आखिर के अंदर गालियां निकालनी शुरू हो जाता है। ठीक है जी, डिबेट एंड हो गई है। कोई और दोस्त बात करना चाहती है तो कर। आप तो पहले से गाली निकाल रहे हो ना, आप तो पहले से गाली निकाल। हमारा दीन हमारे लिए मेरे ला साथ इलाहा डिबेट खत्म हो गई है। नहीं, ला गाली इलाहा डिबेट का इल्लल्लाह एंड है, मोहम्मद गाली ला डिबेट का इलाहा एंड है, इल्लल्लाह मेरी तरफ से डिबेट एंड ला इलाहा जी। इल्लल्लाह मोहम्मद कोई और बात कर ले भाई, किसी ने करनी है। जी आपने कहा बुंडे मारते हैं, तो निदा नस्ल जो केस है उसका, वो आपने यूट्यूब के ऊपर देखा है? वो उसकी जो उसने मारी है, वो कहती है मैं स्पीड लगा के नहीं नहीं नो, निदा नसर किथे तुसी लै गए हो? निदा नसर की तरफ किथे लै गए हो हैं? ये तो मिर्जा चूड़ा के अंदर मैंने पूरे एक रिसाला लगाया है, मिर्जा कादियानी सदूमी, और सफा 97 से ये शुरू होता है, और उसके अंदर हमने साबित किया है। सदूमी कहते हैं गांडू को, क्या निकालना क्या है? गांडू को कहते हैं। मिर्जा कादियानी को हमने गांडू साबित किया है। मिर्जा कादियानी बड़ी शौक से गांड मरवाया करता था, वो यहाँ पे देख लेना मिर्जे चूड़े के अंदर। समझ आई कि नहीं? ये मौजू ना छेड़ो मेरे साथ, ये मौजू ना छेड़ो, मौजू कहीं और चला जाएगा। कोई किसी चीज का जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। मिर्जे को गांडू हम साबित कर चुके हैं, समझ आई कि नहीं? दलाइल के साथ। तुम्हारी किताबों के असल स्कैन ये देखो, मेरा जवाब ये है, तुम्हारी किताबों के असल स्कैन मैंने लगाए हैं। असल स्कैन लगा के साबित किया कि मिर्जा गांडू सी है, मिर्जा गांडू सी है, मिर्जा बोंडू सी है, ये साबित कर दिया मैंने। समझ आई कि नहीं? ये बात ना करना मेरे साथ, ये बात ना करना दोबारा। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। बोनी साहब आए हैं। बोनी साहब कौन है जनाब? बनी भाई अपनी दोस्त है, आते रहते हैं। बोलेंगे तो पता चलेगा ना अपने दोस्त हैं कि कोई और हैं। जी बनी भाई आप जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती साहब ये विकी सियाल साहब बड़े अच्छे बंदे लग रहे हैं। इन्होंने ये आखिरी अपनी बहुत अच्छे इंसान है। ये जो इन्होंने अपनी आखिरी स्टेटमेंट दी है, तो ये तो फिर वो रब्बा न्यूज़ भी पढ़ते होंगे मुफ्ती साहब के नहीं पढ़ते होंगे? नहीं, ये बड़ा कुछ पढ़ते हैं। वो कहते हैं मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। तो ये कहीं निदा नसर एकेडमी के कोई स्टूडेंट तो नहीं है? वो जो उस्मान मुरब्बी ने जो 150 बच्चों के उस्मान मुरब्बी ने जो तबरक दिया था 100 से ज्यादा कादियानी बच्चों को। हाँ जी, तो ये उनके स्टूडेंट तो नहीं है? पूछ ले पहले। वो लग रहा है, लग रहा है कि ये उस्मान मुरब्बी का तबरक ले चुके हैं। फार्म हाउस पे लेके जाता था ना तालीम। पूछ के देख, इनसे पूछे जरा, पूछे, शायद आपको ये बता दें, मुझे तो नहीं बताते। ये विकी सियाल साहब नुसरत जहां एकेडमी में तो नहीं पढ़े हुए आप? नहीं, अल्लाह माफ करे, मुझे कोई पता नहीं है। आपको पता नहीं है? आपको पता होना चाहिए यार। ये तो देखें, ये तो मामला तो आपको ये भी मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी के अंदर पूरा रिसाला है, और रिसाले का नाम है ये मैं निकाल दूं जरा, और ये कादियानी कंजर खाना और निदा नसर स्कैंडल। कादियानी कंजर खाना और निदा नसर स्कैंडल, ठीक है? सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और मजीद इसके ऊपर मैंने रोशनी डाली है, अपनी एक किताब है। आप उतनी देर बात करें, मैं ये मेरी किताबें हैं, तो मैं तलाश कर लूं वो कौन सी किताब है। अच्छा विकी सियाल साहब, अगर आप मौजूद हैं, आपसे एक सवाल पूछ लूं? आप जो दिल करे जवाब दे देना, क्या कहते हैं? हुक्म। विकी सियाल साहब, आप मिर्जा साहब को तो मानते हैं, ये तो आपने बता दिया, चलें कोई नहीं, आप जो भी मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके घर में कोई बच्चा बड़ा होता है, तो आप उसको इबादत करने का तरीका बताते हैं जो मिर्जा कादियानी ने समझाया आपको?
نہیں اللہ معاف کرے, ہمیں مرزا قادیانی کیوں رسا بتانا ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی پیچھے جانا ہے نا بھائی دیکھیں نا, مرزا غلام قادیانی کو جب آپ نے مان لیا تو اس کو یہ فالو آ گیا کرنا بھائی, آپ نے. آ گئی بھائی. قادیانی بچے بازی, یہ نہیں دیکھیں ابھی نا بھائی کی بات قادیانی بچے بازی, یہ ہے وہ عثمان, یہ عثمان نظر آ پیچھے رہے تو نہیں ہے وکی سیال صاحب, دیکھیے گا ذرا, کچھ جانتے ہیں آپ ان کو پرانے ہیں. یہ بچوں قادیانی بچے بازی رسالے کے اندر پوری تفصیلات اس کی موجود ہیں. بچے بات میں چھوڑو. نہیں ابھی اب نا بھائی بات کر رہے تھے نا, جب بچے بازی چھوڑو, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تم مدرسوں کے اندر بنڈے مارتے ہو. ابھی اچھا کہہ رہے ہیں مفتی ہم صاحب, چھوٹے یہ تو بچے. ان کو یہ تو ان کو اپنی جماعت کو کہنا چاہیے کہ بچے بازی چھوڑو. نہیں ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم بنڈے مارتے ہو, تو ابھی کہہ رہے چھوڑے, یہ کیا چکر ہے؟ نہیں اتنی ترجیح چھوڑ, اتنی جلدی چھوڑ بھی دیا, اتنی جلدی چھوڑ بھی دیا. جناب علی نا بھائی نے بڑی پیاری بات کر رہے تھے. نہیں بھائی بڑی چھوڑ دو, چھوڑ دو بھائی. اچھا جناب علی آپ کی اجازت سے بھائی سے ایک سوال پوچھ لوں تو میں امید کرتا ہوں یہ جواب دیں گے, لازمی دیں گے, ہاں جی, کیونکہ مرزا غلام قادیانی کو آپ مانتے ہو. جناب علی دیکھو نا مکس ہو رہی ہے باتیں مکس ہو رہی ہیں. اچھا رک جائیں, سوال تم لے لینا, سوال لے لیں. اچھا مرزا غلام قادیانی نے نا آپ کو عبادت کرنے کا نا ایک طریقہ بتایا, یہ لاش کی, اس کو اس نے خشوع خضوع کا نام دیا. جب آپ کے گھر میں کوئی بہن بیٹی یا چھوٹے بچے جب جوان ہوتے ہیں تو آپ ان کو گھر میں سب ساتھ فیملی بیٹھ کے تو ان کو خشوع خضوع کا طریقہ سمجھاتے ہو ویسے؟ جی یہ میں نے آپ پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. یہ روحانی بات ہے. تو میری بات نہیں ہے بھائی, میرے اوپر نہ ڈال دینا. آپ کے ساتھ ہوں وکی صاحب, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ ان کو یہ جواب دیجیے روحانی بات ہے. مولوی صاحب آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والی. اب یہ جواب ایک میں رکیں ذرا, ایک بندہ بات کرے, لیکن یہ میں نے آج تک بات سنی ہے جو آپ نے یہ بات کر دی. اچھا نہیں سنی, ہو کٹ دینے ہیں, کوئی گل نہیں, تو نوسل وہا دینے ہیں. اچھا مفتی صاحب ابھی نہ دکھائیں, مفتی صاحب ابھی نہ دکھائیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان سے یہ وعدہ لے لیں کہ یہ آج نا آپ سے یہ حوالہ لے کے جائیں گے, اور چونکہ مرزا غلام قادیانی نے یہ عبادت کرنے کا طریقہ ان کو بتایا ہے تو یہ اپنی فیملی کو یہ بات نا اپنی فیملی میں خواتین کے سامنے بیٹھ کے سنائیں گے اور یہی طریقہ کار اپنائیں گے بھی. کیا کہتے ہیں؟ بالکل, انہوں نے پوچھو انہوں نے. جی وکی سیال صاحب پیچھے نہ جائیں یار, ایسے نہ کریں. حوالہ نکل آیا, اے دیکھو, اے حوالہ آ گیا. وکی سیال صاحب کیا ہو گیا؟ جلد 21 صفحہ 192, صفحہ 192 حوالہ آ گیا. جلد 21 صفحہ 192, کر لو گل لینا. جی وکی سیال صاحب کیا کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع. میں حاضر ہوں جناب علی, آپ سوال کریں, میں جواب دیتا ہوں. بھائی میں نے آپ سے سوال بھی کر لیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بہن بیٹی یا عزیز جو آپ کی خواتین ہوتی ہیں گھر میں, ان کو آپ گھر میں بیٹھ کے خشوع خضوع کا طریقہ بتاتے ہیں, کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے تو آپ کو خشوع خضوع کا اسپیشل طریقہ بتایا عبادت کرنے کا, یہ لاش کی. تو اس کے بغیر, اس خشوع خضوع کے بغیر تو آپ کی عبادت ہی پوری نہیں ہو سکتی. نہیں مجھے علم نہیں ہے. تو پھر تو آپ نے مرزا غلام قادیانی کو مانا ہوا ہے نا, آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ باتیں نہیں, آپ ویسے بڑا سنجیدہ سا سوال ہے, بڑا سنجیدہ سا سوال ہے. کوئی بات نہیں. اچھا مفتی صاحب میں کہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں دو بندے نہ بات کریں, آپ ہی لے کے چلیں. میں کہتا ہوں آپ اس ٹاپک کو نا آپ ہی لے کے چلیں ان کے ساتھ. جی ٹھیک ہوگی. اچھا وکی صاحب, ویسے آپ جو نماز پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں, آج ہمیں بتائیں تو صحیح. یہ جو روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 192 کے اوپر نا مرزا قادیانی نے قادیانیوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے, تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا اس طریقے کو آپ فالو کرتے ہیں کہ نہیں, کہ یا آپ کی کوئی الگ ہی کوئی نماز ہے. جی وکی صاحب. واپس آ جائیں. میرا موبائل نا ڈیڈ ہو گیا ہے, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ,
ਯਾਨੀ ਧੁੰਦਲੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ بس بھی ٹھیک ہے مفتی ਤਸਵੀਰ صاحب ਕਦੀ آپ کی تصویر بھی ٹھیک ਇੱਕਦਮ ہے ਛੋਟੀ بالکل ਹੋ ٹھیک ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਬੈਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ہمیں کلیئر آ رہا ہے سب جو آپ دکھا رہے ہیں لیکن ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਧੁੰਦਲੇ ਧੁੰਦਲੇ ਤੇ ਯਾਰ ਵਿੱਕੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇ- ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਲਸ਼ਪਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। مفتی صاحب مفتی صاحب دیکھ لگتا ہے لینا سب- کتنے عثمان مربی صاحب نے انہوں پھاڑی نہ لیا ہوئے پیچھے ہی چلے گئے نہیں ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਰਬੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਫੋਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਆਈ। ਥੱਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਆਦਿਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਦਿਲ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜ਼ਰਾ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਬਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ बस ਹੋਇਆ बस ਤੇ ਦੇਖੋ ठीक है ठीक मैंने ठीक 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 है, बस बात खत्म बात खत्म बात खत्म। देखिए इस मौजू पे बात करनी है ही नहीं। मुझसे आजत से अगर किसी ने बात करनी है सिर्फ कादियानियत के मौजू पे बात करें, मिर्जा जूनियर जेलमी के मौजू पे बात करें, और कोई बात ही नहीं, समझे कि कोई और बात ही नहीं। बस मेरा मौकफ है जी। विकी साहब हाँ जी विकी साहब आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? हाँ जी नमाज कैसे पढ़ता है मुसलमान बता नमाज कैसे पढ़ता है कौन सी मुझे नमाज बता रहे फजर की तो आपकी आवाज नहीं आ रही विकी साहब। अभी आ रही है बात फजर के कितने फर्ज आप लोग पढ़ते हैं? 2 सुनता तो 2 फर्ज 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 आप वो 2 फर्ज पढ़ के जरा सुनाएं कैसे पढ़ते हैं आप? ले मैं तेरा देनदार हाँ नहीं मैं वैसे देखना चाहता हूँ। एक मिर्जे कादियानी ने तरीका बताया है ना, रूहानी खजान जिल्द 21 सफा 192 के ऊपर 192 उसमें नमाज पढ़ने का एक तरीका बताया। और किताब पता है कौन सी है? किताब है ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम। ये वो इब्राहीम अहमदिया जो मिर्जा कादियानी कहते हैं ये किताब मैंने नहीं लिखी, ये मुझे इल्हाम हुई है, मेरे खुदा ने मुझे यल्लाह ने ये इल्हाम करके ये किताब बताई, ये मैंने नहीं लिखी। माशाल्लाह, तो मुझे पता ना क्या आपकी चला कि बात ये समझ आ नमाज का जो तरीका है ये इल्हामी तरीका है, ये मिर्जे ने नहीं बताया, ये इल्हामी तरीका है, ये मिर्जे कादियानी के खुदा ने उसको बताया था कि तुमने नमाज ऐसे पढ़नी है जी। तो मैं देखना चाह रहा हूं आप मुझे 2 फर्ज पढ़ के जरा सुना दें कैसे पढ़ते हैं आप? ये 2 फर्ज आप कैसे पढ़ते हो भाई? भाई जो तरीका इधर लिखा है ना वो उस तरीके से हम नहीं पढ़ते। मुझे ये लग रहा है ना कि ना ये जो नमाज के तरीके हैं ना ये आप ज्यादा अच्छे जाते हो हाँ? नहीं मैं कह रहा हूं इधर देखिए ना, आपने मुझसे पूछा ना कि तुम कैसे पढ़ते हो, पूछा कि नहीं? नहीं आपने मुझे बोला है ना कि पूछा आप क्या? कैसे पढ़ते हो भाई तो मैं जो नमाज पढ़ता हूं जो इस तरीके से नहीं पढ़ता, इस तरीके से नमाज पढ़ना हराम है और ऐसी नमाज होती ही नहीं है। यार आप कौन होते फैसला करने वाले यार? आप खुदा नहीं हो। आप क्या समझते हैं मिर्जे कादियानी ने नहीं, जो आपको- तरीका लिखा है वो ठीक लिखा है? अल्लाह माफ करे कुछ तो अल्लाह बोलिए। माफ करे, मिर्जा अल्लाह कादियानी ने माफ जो करे, तरीका लिखा है अल्लाह नमाज माफ पढ़ने का वो करे, ठीक लिखा है। अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे मिर्जा कादियानी ने जो कौन है? नमाज पढ़ने का तरीका बताया वो छोटी ठीक बात बताया है। कि नहीं बताया? ठीक है हम छोटी बात यार कुछ ये तो बता बोलो। मेरी मिर्जे बात सुनो, कादियानी ने आवाज आ रही नमाज है? पढ़ने का जो तरीका बताया मेरी ठीक बात आ बताया रही कि है? गलत बताया है? मेरी बात आ रही है यार बन्नी साहब इन्हें मेरी पकड़ च नहीं आना, इन्हें मेरी फड़ाई बात नहीं आ रही है देनी। आपको मेरी आवाज आ रही है ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਇੰਨਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜਨੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ نہیں نہیں میں ਫੜਨੇ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ مفتی ਨਹੀਂ। مفتی صاحب ہم نے پکڑنا ہی نہیں ہے, ہم نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا ہے, اتنا بتا دیں، جواب مجھے بھی اپنی بتا مرضی دیں، کا جو قرآن دینا میں- چاہتے ہیں قرآن دیں. میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ قرآن پہ کہاں لکھا ہوا؟ او بھائی میں نے آپ سے کیا بات کی ہے, میں تو مانتے ہی نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہو. میں تو آپ کو آپ کی
آپ کو پاکستان کے قانون کے مطابق اپنی مسجدوں کو مرزواڑہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اس طرح آئیں گے نا تو پھر میں دوسری طریقے سے آؤں گا۔ لیکن دیکھیں میں آپ سے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل۔ میں آپ سے بس اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں، تعلیمات کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ دیکھیں جو بندہ جو سچ بول رہا ہے ہم نے بھائی آپ نے اس کو نبی مانا ہوا ہے۔ میں اللہ معاف کرے کنے نبی مان لیا پراوا، تسی یہاں پہ نبی بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ کیا مانتے ہو آپ مرزا غلام قادیانی کو؟ ہمارے اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، اس نے نہ غلام مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی قبر آزاد کشمیر میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ زندہ نہیں اٹھائے گے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ السلام دوبارہ آئیں گے۔ ہم اس یار وہی کام جہاں میرے نال کرتا سی پیا تہاڈے نال بھی شروع کرتے نا بنی صاحب، اینے کسی ایک موضوع تے ٹکنا ہی نہیں۔ نماز دے بارے پوچھتے ہو پہ وہ گل ویکھ لو کدھر اور لے گیا۔ میں سمجھ گیا مفتی صاحب، ایک موضوع تے اگر اینو ٹکا جاؤ نا من جاواں بنی صاحب میں وینا۔ اچھا چلے مفتی صاحب کوشش کرتے ہیں۔ اچھا وکی صاحب آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، رائٹ؟ ہاں جی اچھا تو میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھ لوں، پھر وہ اس کا آپ جواب تو دے ہی دیں گے، اتنے تو آپ میں عقل اور علم تو آپ کو اتنا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی، کیونکہ آپ بھاگ کے اس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں میں لے ہی آؤں۔ اچھا مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن میں میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا۔ وہ کائنڈلی وہ آیت دے دیں، بس وہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں آپ سے کرنی، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات میں ایسی باتوں میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ایسے دیکھیں، اور یار رکو تو صحیح بھائی، ابھی تو آپ کے مرضی کا آپ کی پسندیدہ ٹاپک کا آپ نے کہا عیسیٰ ابن مریم کی بات کرنی ہے، آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے، آپ نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں کرنی، آپ نے خود ہی بولا۔ میں نے آپ سے پیارے بھائی میری یار بات مکمل ہونے دو نا وکی صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال، میں نے لمبا چوڑا سوال ہی نہیں کیا وکی صاحب، ایک سوال اور اس کا جواب جہاں سے آپ دینا چاہتے ہیں نا قیامت تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ میں ابھی ایک سوال پوچھوں گا۔ نہیں میرے سوال کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ نہیں آپ نا میں اس کا نا میرے سوال کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا جو آپ کی پسندیدہ ٹاپک، آپ کا پسندیدہ، دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ ٹاپک پہ بات کرنی ہے، آپ کا پسندیدہ ٹاپک، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا یار ایک سوال، اس کا آپ نے بس جواب دینا، جو دل کرے جیسا دل کرے آپ جواب دے سکتے ہو۔ میں نے آپ کو لمبی چوڑی بحث میں ڈالا ہی نہیں، میں نے آپ سے کہا مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا۔ اب آپ نے نا قرآن سے وہ آیت دینی ہے، قیامت تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، نہیں تو آپ یہاں پہ کہیں گے، سنیں بھائی، نہیں تو آپ یہاں پہ کہیں گے کہ مرزا غلام قادیانی ایک جھوٹا مفتری شخص تھا جس نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے۔ چلیں یہ میں میوٹ لگا رہا ہوں، مفتی صاحب کتنا آسان سوال، دیکھیں میں میوٹ لگا رہا ہوں، صرف اب ان کا جواب لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ لیں۔ مریم کا ہسبینڈ کون تھا؟ کر لو کوئی ٹائم فکس کر لو، 2 منٹ وہ بولن 2 منٹ تسی بولو۔ بی بی مریم بنی صاحب کی جیڑی گل کرن او دی دلیل دینا، بنی صاحب تسی جیڑی گل کیتی ہے او دی پہلے دلیل دے دیو، پھر انہاں کو جواب طلب کرو۔ حضرت عیسیٰ السلام کے والد صاحب کون تھے؟ حضرت عیسیٰ السلام کے والد صاحب کون تھے؟ ہلو میں جواب دینا ہے، آپ نے سوال نہیں رکھنا، جواب دینا ہے، اسی لیے میوٹ لگایا ہم نے مائک کو۔ نہیں حضرت عیسیٰ السلام کے والد صاحب کون تھے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، جو سوال پوچھا ہے نا وہ بات کریں۔ چلیں یہ میوٹ میں نے دوبارہ لگا لیا ہے، چلیں آپ حضرت عیسیٰ السلام جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے نا، جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے اس کا جواب دیں،
नहीं तो मिर्जा गुलाम कादियानी को आप खुद कह के जाएंगे वो झूठा और मुफ्तरी शख्स है, ठीक है। हजरत ईसा इस्लाम अब के ये बरसक मैंने कौन है? आपसे सवाल किया है ना, उसका बस जवाब देना है आपने। आपको तीन दफा मौका देंगे, उसके बाद फिर आप इसका मतलब ये समझेंगे कि आप मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा और मुफ्तरी मानते हैं। अच्छा, इसमें हवाला तो मैं पढ़ देता हूँ बनी साहब, हवाला मैं पढ़ देता हूँ। रूहानी खजाइन जिल्द 19 है, सफा 98 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। नहीं, बस इसका भी मरियम साहब का- जवाब दे दे बस। जनाब अली, आपके जनाब पास अली, 3 ये टर्न्स बता है। दो, अगर इसके बाद हजरत देखें ईसा आपके पास इस्लाम के 3 बरसक टर्न्स कौन है, थे? मैं लगा रहा हूँ माइक म्यूट पे, आपने इस सवाल का ना आपने जवाब देना। ये मैंने लगा लिया माइक म्यूट। अभी आप सवाल का जवाब दो, विकी, टाइम ना जाया करो। अब तुम झूठे साबित हो रहे हो, जवाब दो जल्दी जल्दी। हजरत ईसा इस्लाम के बरसक कौन थे? अब जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। इनका जवाब दो। तुम्हें जोड़ते मज थले छड़ना तू जाना तू कटे थले। इधर की ना नदीम साहब, नदीम जी। साहब जी सर। मैं ना मुशाफती पैनल च हवाला सेंड करन लगा जे ते इधर जी। हाईलाइट इबारत ला दिया जे। अच्छा इस जी। एक हवाले दे उत्ते हुण रखिया जे बन्नी साहब, मेहरबानी इनू हुण इधर उधर नहीं जान देना। नहीं आप जी मुझे बस जवाब चाहिए, मैंने इधर उधर जाना ही नहीं। इन्होंने कहा कि मेरा फेवरेट टॉपिक है ईसा इब्ने मरियम का, ठीक है। हाँ। मैंने उनसे ईसा इब्ने मरियम के बारे में जो सवाल पूछा उसका बस जवाब दे दे, बात खत्म। ईसा का बाप कौन? बस मैंने आपसे यार मैंने आपसे जो सवाल पूछा है ना, आपने इधर उधर की बात विकी साहब करनी ही नहीं है। मुझे बताओ ईसा का बाप यार कौन? मैंने तो कुछ बताना ही नहीं है, मैंने आपके सामने सवाल ईसा का रखा बाप है, कौन है? आपके सामने हवाला रखा है, ठीक है। मिर्जा गुलाम कादियानी झूठे का मुफ्तरी का मैंने हवाला रखा है, ठीक है। अब अगर आप नहीं मानते कि वो झूठा था तो आप मुझे बताएं कुरान की कोई आयत दे दे। अगर मानते हैं कि वो झूठा था और आपके पास कोई आयत नहीं है, आप कह दें कि आपके पास कोई आयत नहीं है, बात खत्म। चले, मैं म्यूट लगा रहा हूँ। ये लो वाला लग गया, जवाब दो अब, ठीक है। ये रूहानी खजाना जिल्द नंबर 19 है, सफा 98 है। तोहफा गोलड़ी है, तोहफा गंदुआ। अब जवाब दे, अब इसके ऊपर ही रहना, इसके ऊपर रहना, जवाब दो जल्दी करो आप। अब पास आते जा रहे मुसलमान होने के लिए, तुम करीब करीब भी पहुंच गए। जवाब दो, जवाब दो, जवाब। ईसा का बाप कौन है? और जवाब दे जरा, तेन पूछे ना। ईसा बाप कौन है? अच्छा मैं पूछूंगा तुम्हारा बाप कौन है, फिर भाग जाना तुम। नहीं यार नदीम भाई रुके तो सही, रुके। मैं भला मैं बस सब दुनिया को ये जितने 37 लोग सुन रहे हैं अभी, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये शख्स मिर्जा को एक सवाल के जवाब में सच्चा नहीं साबित कर पा रहा। सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाह रहा हूँ। हवाला सामने है, मिर्जा गुलाम का बात सामने है, क़यामत तक का इसको टाइम दे दिया है, सबने म्यूट लगा दिया है, लेकिन ये बंदा मिर्जा गुलाम कादियानी को सच्चा नहीं साबित कर पा रहा। आप अंदाजा लगा लें यहाँ से। चलें, मैं दोबारा म्यूट लगा रहा हूँ, मैं दोबारा म्यूट लगा रहा हूँ। आपने कुरान की वो आयत देनी है जिसके बारे में मिर्जा गुलाम कादियानी ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, कि अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा। हवाला आपके सामने है, ये नहीं आप कह सकते कि हम कोई अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने ना वो आयत पेश कर देनी है, बस, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। चलें, ये दोबारा मैंने म्यूट लगा लिया। ले पीछे नहीं जाना, फोन आ गया, फिर पीछे ना जाओ यार। पीछे क्यों, कौन आ गया आप पे? पानी तो नहीं आ गया? एंबुलेंस आई है ना, बंदा जख्मी होया तो एंबुलेंस ने ते आना ही है। मिर्जा मसूर का फोन तो नहीं आ गया? नदीम भट्ट साहब देखें, अब हमारे से तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम इनको लेके चलेंगे, हर सवाल का जवाब भी देंगे और ये करेंगे। सिंपल सा सवाल रखा है, मिर्जा गुलाम कादियानी की इबारत सामने मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह लगा दिया, अब इन्होंने बस जवाब देना। चले, नहीं हमने कुछ नहीं बताना भाई। ओ भाई मैंने कुछ नहीं बताना आपको। आपने कहा मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैंने उस टॉपिक के ऊपर पहला सवाल आपके सामने रखा है मिर्जा गुलाम कादियानी की इबारत के मुताबिक आपने कुरान की आयत देनी है, बात खत्म। ये ले
नॉलेज की बातें हैं। फजूल की बहस करते रहोगे, बात को फायदा कोई नहीं है। चलो जवाब दो, जो वैसे अच्छा पागल हो जवाब चुके दो, हैं तुम जवाब दो, जवाब दो। तुमसे भागना है। तुम लोग ना ये शब्द पकड़े नहीं पहनते हैं, सिर्फ तोते बने दुनिया होते को हैं। मैं ये हाँ, दिखाना और चाह रहा ऊपर हूँ से कि एक मरज़ई ब्रॉड के ऊपर बैठ के एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। वो मरज़ई कौन सा? मिर्जा कौन गुलाम मरज़ई? कादियानी को मैं मरज़ई के नहीं बारे हूँ। में जो उसने अब मिर्जा गुलाम कादियानी ने मरज़ई जो नहीं हूँ। कहा हुआ है मैं उसको मरज़ई नहीं उसको नहीं बता पा रहा कि कुरान की एक ओ आयत मेरे नहीं भाई, दे पा रहा, उसको सच्चा नहीं ओ नहीं साबित कर पा कुरान, रहा। ओ नहीं और मेरा सबसे ज्यादा ईमान, ना, मेरा ईमान क्या भला? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस मेरा ईमान ये है। मिर्जा मैं भी कोई यही मरज़ई पढ़ता नहीं था। हूँ, इसका जवाब दो, इसका मैं जवाब कोई दो, चक्कर नहीं हूँ। हाँ, इसका जवाब मैं दो, बस जो अल्लाह पूछा को जा रहा है मानता इसका हूँ। जवाब। मैं बस अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के नबी को मानता हूँ, अल्लाह की आखिरी किताब है कुरान, मैं उसको मानता हूँ। ये मरज़ई ये जो चीजें बना रहे हो ना, दो ये बंदी सुन्नी वहाबी ये तुम लोगों के काम है, ये हरामियों। जवाब दो, जवाब तो सीधा सीधा कह रहा कुरान पाक, लानतुल्लाह अल काज़िबीन। वो नहीं तुम्हें आयत का नहीं पता उसका? कोई अच्छा बात करता हूँ चले ना। नदीम साहब ये इस तरह आ रहे हैं ना। कैसे हो? अच्छा इस तरह आ रहे हैं ना, एक मिनट एक विकी साहब उन्हीं फड़ लेने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਸਬਰ ਲਵੋ ਉन्हीं ਫੜ ਮੈਂ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ नहीं ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। शाजी वही नहीं, मौजू है, ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ वही ਕੰਮ मौजू है। एक मेरी मिनट गल दें। सच्ची हुई है कि नहीं? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, एक मिनट दें सिर्फ। चलो जी तुसी मिर्जा साहब ਨੂੰ नहीं मानते, ठीक है मान लिया। विकी साहब अब आपने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक किताब कुरान करीम के ऊपर ईमान लेके आते हैं, राइट। अब जिसने कुरान के ऊपर झूठ बोला वो मुफ्तरी है ना, ये तो मानते हैं, ये तो कुरान से बता रहा हूं ना मैं आपको, वो तो मुफ्तरी है, ठीक है। अब ये जो इबारत मिर्जा गुलाम कादियानी की है, जो इसने कहा है अगर कुरान में मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, आपके सामने कोई ऐसी आयत आई है आज तक? अगर आपने कुरान पढ़ा हो तो बस इतना बता दें। चलें हम मिर्जा गुलाम कादियानी को निकाल देते हैं थोड़ी देर में, चलें बताएं। क्या है विकी साहब, अब तो मिर्जा गुलाम कादियानी को भी निकाल दिया बीच में से। अब तो आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। कोका कोला पी लो कि टोनिक वाइन पी ली। आवाज आ रही मेरी? आ रही है, नहीं जब आप पीछे चले जाएंगे ना तब हमें आवाज नहीं आएगी आप क्या कह रहे हैं। तो आपको मेरी आवाज आ रही थी? मैंने आपको क्या कहा है? या आ रही है आवाज। अच्छा तो आपने कुरान तो पढ़ा होगा माशाल्लाह, कि नहीं? या पढ़ा है। हाँ तो ये जो सामने एक इबारत मैंने, ये तो मुफ्ती साहब ने एक इबारत लगाई है सामने, ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो कहा है कि अगर कुरान में मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, ठीक है। आपके सामने आज तक कुल आपकी उम्र के मुताबिक जितना भी आपकी उम्र है, मैं अंदाजा नहीं लगाता, बहरहाल जितने भी हैं, तो आपने कुरान भी पढ़ा है। आज तक आपके सामने कोई ऐसी इबारत आई है जिसमें कोई ऐसी बात लिखी हो? और चलो जवाब दे दो, बार बार पीछे भाग रहे हो। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। देखे ना शाहजी आप ये देखे ना बस कि ये इस आखिरी तरफ से आ सावां ते रहे। टुरदे जे पे, बस आखिरी सावां ते टुरदे, आखिरी जेड़ा बपका हुंदा है ना मरन तो पहले ओ जे। शाहजी देखे ना ये थोड़ा सा दूसरी तरफ से आ रहा था, मैंने कहा चलिए हम दूसरी तरफ से जाते हैं, कोई बात नहीं, टॉपिक वही है। ਬਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ नहीं यार उसको छोड़ें, उसको आदिल भाई उसको छोड़ें। नहीं मैं सिर्फ आपको पूछ रहे हैं। हाँ आदिल भाई देखें इसको छोड़ें। अभी तो वो मिर्जा गुलाम कादियानी वाला मुफ्ती साहब ने दायरा नहीं बनाया इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुदय्यन नबूवत को काफिर समझते हैं, बात समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो देखे ना उसने कहा कि मैं मिर्जा गुलाम कादियानी को नहीं मानता, मैंने कहा कोई बात मैं सिर्फ हम छोड़ देते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी। आप दायरा के बारे पता सी, चलो सबन लग गई ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, चलो किसी और टाइम में सवाल ठीक होगा। हाँ ठीक है। अभी तो देखे ना आदिल भाई के इसने कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी को ये नहीं मानता, मैंने कहा कोई बात नहीं। इसने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
और पाक किताब कुरान करीम को मानता हूँ। मैंने कुरान से इसके सामने सवाल रख दिया, इबारत सामने लगी हुई है, कुरान ये इसने दावा किया कि इसने पढ़ा है। मैंने सिर्फ इससे जवाब मांगा है कि भाई आज तक आपने कुरान में कोई ऐसी बात पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बस इतना बता दो, बात खत्म। बिल्कुल। इसकी बड़ी गहरी चोट आई है जरा अन्य टाइम का पीछे बैठे आए हैं। एम्बुलेंस सही पट्टियाला ला रही है। ਸੁਬੂਈ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਬਈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਬਸ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣੀ ਆਲਾ ਮੈਂ। मुफ्ती साहब ऐसा भी हो सकता है मुझे लग रहा है सांस रुक गए हैं विकी साहब के। ने ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 302 ਲਵਾਨ। मुफ्ती साहब माजरत दोबारा माजरत के साथ आप गुफ्तगू कर रहे थे। आपको पता है मैं वैसे तो नहीं आपकी बात सुनता ही हूँ, लेकिन ये बंदा ना ये जिस तरीके से आ रहा था ना, मजबूरी थी ये इसके साथ थोड़ी सी इस तरह बात करना। नहीं कोई गल नहीं, कोई तुसा केड़ा कोई गलत गल की, गल ठीक है। बल्कि मैं तो खुद इजाजत दी सी ना कि कोई होर बंदा गल करे। जी जी, तो अभी भी हमारा सवाल वहीं पे है। हाजिर हूँ मैं, 2 मिनट दो बस यार, मैं हाजिर हूँ। सवाल न्यूरो वही है, बयान का आपसे इंजेक्शन सवाल लवाए, वही है, आप 5 मिनट बाद आओ। न्यूरो बयान का इंजेक्शन लवाए ने चिराग बीबी अकेडमी तो लवाया है। फिर वापस टुर गया। आंदा मैनू मरदई ना कहो, मैं मरदई को नहीं। इन्हों के वडेरे ना फखर करते होंगे सन कि असी पक्के मरदई हैं। बदर रिसाला है, 17 जनवरी 1907 का शुमारा है। हदिया कासम के नाम की नज़म है। आंदा किया है राज तश्त अज़बाम जिसने ईसवियत का, यही वो हैं, यही वो हैं, यही हैं पक्के मरजई। वो अपने आप पक्का ही मरजई कहते होंगे सन, तू आना पे नहीं मैं मरजई को नहीं, जे मैनू मरजई ना कहो। अज मरजई तुहाडे वास्ते गाल बन गई है। तुहाडे वडेरे ते फखर महसूस करदे होंदे सन कि असीं पक्के मरजई हैं। मुफ्ती साहब उथों दसो ना जरा, सानू ये लोग पहले चूड़ा कहंदे सी ते फिर हुण असीं शुक्र करने कि सानू मरज़ई कहंदे। वो तो बड़े ही हवाले ने ना, वो तो मिर्जा चूड़े के अंदर तफसील। लो जी मरज़ई नाश्ता दी बस हो गई लगदा, मरज़ई दी बस हो गई। बया हो गया। वाह आई थे मरज़ई ने जनाब चंगे लित्र पवाए ने मिर्जा साहब। लगदा आ जाओ मिर्जा मरज़ई कोई मसूद होर आ जाओ भाई। अबे आओ मुश्किल इतना आयो सवाल भाई तो नहीं नाश्ता पूछा कर लिया। मादरत से, मैंने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं जी पूछा जनाब, आपसे। नहीं बड़ा आसान जिहा सी, सिर्फ नमाज का तरीका ही दसना सी, उन्हें दसिया को नहीं। आ जाओ भाई नमाज काल दे पाओ तरीके भाई ये मर्द। अच्छा भाई मुंडियो बवो फिर तुसी महफल ला के ते इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर तक हाजिर हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। ए
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔